Thank you, recording. How is everyone doing? Good to see everyone. Please switch on your videos. Hi Tejaswini, कैसे हैं आप? Good evening, sir. I'm very well. Thank you. आप कैसे हो? Wonderful, very nice, very nice. Good to see you. तराली जी, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसी हैं? नहीं तो आप कंप्लेन करेंगी कि मैंने आपसे पूछा नहीं और आपका नाम नहीं लिया. Unmute yourself, please unmute yourself. First of all, who am I to complain you? No, I'm Please. just kidding. Just kidding, Don't pulling you embarrass like. me. No, just kidding, just kidding. Good to see you. Very, very good evening. Very good evening. Wonderful. Okay, Mansi ji. Hello, Mansi ji. How are you doing? So good to see you after very long. Hi, good evening. I'm very, very well. How are you? Wonderful. Very nice. Good to see you. Thank you so much. I was excited. Wonderful. Yeah, I'm excited too to see you. It's been really long. Very long actually. But wonderful. Great seeing you back again. Thank you so much. Nice. Thank you. We have new participants as well. Adhya Smita. Is that the right pronunciation of your name? Adhya Smita Pradhan. Can you hear me? Hi. I think unka video hang ho gaya hai. No problem. She's going to come back. Hi Mukesh. Please switch on your video if you can. Would be nice. And then we have. Hi Mukesh. Namaskar. कैसे हो? बस ठीक है सर. Good to see you. Wonderful. मैं ठीक हूँ. आप ठीक हो? Good to see you. Wonderful. Hi Anuj. And then we have Hoshang. Hi Hoshang. Hi. Hello. How are you? I'm good. आप कैसे हो? Wonderful. Very nice. Very good. अगर आप सभी वीडियोस ऑन करके सुन सकते हैं तो would be nice. अच्छा रहेगा so that I can also understand क्या बातों में कोई difficulty है, कोई complication है, तो at least would be easier for everyone. So one second, Anuj is entering again. Hello, how are you doing, my friend? Anuj, can you hear me? Hi, Anuj. Hi. I couldn't hear Good to see you. Good to see you. Good to see you. Same You're here back. with the beard. Very nice to see you. कैसे हो आप? सब ठीक? बहुत बढ़िया, आप बताओ. Wonderful. Very, very nice. Welcome to SAG Learning. I'm happy to see you back again here. Thank you. Wonderful. Very nice. All right. I think there's one participant. She left. She's going to come back. Adhya Smita Pradhan. I think some internet issue. She's going to join. Nevertheless, we can begin. आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है. लेजीनेस, करेक्ट? Yes. तो जाहिर सी बात है आप सभी लेजी हैं, इसलिए ज्वाइन किया या फिर सीखने के लिए और समझने के लिए. इनफैक्ट दोनों चीजें अच्छी हैं. रियली नाइस. कौन सफर करता है लेजीनेस से, बताओ? Who keeps procrastinating? अरे दो हाथ खड़े हैं, मतलब प्रोक्रास्टिनेट करते हो. आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह तरसों. ओके, क्यों करते हो ऐसा? कभी सोचा खुद से? कभी समझने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है? क्यों प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हो कि आज नहीं, कल कर लूंगा, कल नहीं, परसों कर लूंगा, अच्छा ठीक है ना, बाद में कर लूंगा. We keep giving ourselves excuses, but हम करते नहीं हैं. कभी खुद को जांचने, परखने और समझने की कोशिश की है that why does this happen? Please raise your hands. Would be nice. Yes. तराली जी बताइए, क्यों ये लेजीनेस क्रीप होती है? क्यों हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं? सोचिए, बताइए. If I deeply think, I think because of my mental issues like depression and overthinking. Actually, I'm a very active person actually, but sometimes what happens, I feel like not to do anything. I feel like not to get down from the bed. I get it. Okay. Once I take the medicine and get up, then I'm very active. This is the problem. So basically, I get it.
बेसिकली ओवरथिंकिंग हो जाती है, वी गेट स्टक, एंड द मोमेंट वी गेट स्टक हमारा मन नहीं करता किसी भी चीज को करने का, एंड Yeah. दैट्स वेयर वी कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग. ओके, दैट्स इन योर केस. एनीवन एल्स? और बताएं कि क्यों लेजीनेस क्रीप अप होती है. हाय आद्या स्मिता. हाय, हाउ आर यू डूइंग? Hello, sir. I'm good, sir. Wonderful. Thank you so much for the beautiful sketch that you sent us. Welcome, sir. Thank you. That's very beautiful. Really appreciate it. Thank you. It's really a Thank big you. thing for me. Thank you. Really, really appreciate it. हाँ जी, बताओ. और लेजीनेस, हाँ जी साहिल बताइए, क्यों लेजीनेस होती है? आई एम श्योर अगर लेजीनेस से गुजर रहे हो तो इतना तो कभी सोचने की कोशिश की होगी, खुद से पूछा होगा कि लेजीनेस क्यों हो रही है, किस वजह से. देयर इज वन वर्ड अटैच्ड टू लेजीनेस, और वो लेजीनेस का कॉज है वो वर्ड. बताइए. सर कई बार जब राइट टाइम पे चीजें हम पूरी नहीं कर पाते ना, when we are not able to finish up things at the right time, तो क्या एक इंटरेस्ट लूज हो जाता है उस चीज को करने के लिए. वो तो मतलब डिसइंटरेस्ट काइंड ऑफ जो है वो हो जाता है. तो उस समय हम लोग वो जो है लेजी स्टार्ट टू लाइक प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स कि आज नहीं चलेगा, कल कर लेंगे, कल Absolutely, absolutely. That is the correct word. Disinterest causes procrastination. Disinterest का सही मतलब है या सही शब्द है boredom. जब बोरिंग हो जाती हैं चीजें, या जब आप डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, बाकी सब म्यूट करते हैं खुद को. जब हम डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं किसी चीज में, या हमें बोर्डम क्रीप करता है, वहीं पर तो लेजीनेस होते हो. क्या जिंदगी की सब चीजों में लेजीनेस हो? सोचो, आज सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी चीजें कर चुके होंगे, क्या सब में लेजी थे? इंस्टाग्राम खोलने में लेजी थे, वीडियो गेम्स खेलने में लेजी थे, या कोई और काम जो आपके पसंद का है जिसमें मजा आता है उसमें लेजी थे? जो क्रिकेट खेलता है, क्या उसे क्रिकेट खेलने में मजा आता है, तो क्या वो लेजी हो सकता है उसके लिए? जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस चीज में आप बोर नहीं होते हो, किताब के 2 पन्ने लेकर बैठ जाते हो, नींद आनी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि मजा नहीं आता ना, बड़ी बोरिंग सी चीज है. तो बोर्डम इज द कॉज, और डिसइंटरेस्ट इज द कॉज ऑफ लेजीनेस. लेजीनेस बेसिकली एक सिम्टम है, प्रोक्रास्टिनेशन सिम्टम है, लेकिन इसका कॉज है डिसइंटरेस्ट. सो जहां जहां आपका डिसइंटरेस्ट होगा, जहां जहां पे आपको मजा नहीं आएगा. अब डिसइंटरेस्ट कहां कहां और क्यों क्यों होता है, सोचो जरा. डिसइंटरेस्ट कहां से क्रीप होता है? क्योंकि ब्रेन जो है ना, एक बड़ी कमाल की फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करता है. वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को मुझे बता सकता है? ब्रेन जो है बड़ा कमाल के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करता है, और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही सारे की सारी लेजीनेस अटैच्ड है. तराली जी बताएं. Because of doing the same thing again and again. नहीं नहीं नहीं, चलो एक बात बताओ. सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. बहुत सारे लोग काफी सारे सेशंस अटेंड करते चले जा रहे हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे आके आपको बोरिंग नहीं लगता? No, not at all. रुको, नहीं लगता ना बोरिंग? क्यों नहीं लगता? सोचो जरा, क्यों नहीं लगता? सोचो, क्यों बोरिंग नहीं लगता? एक मिनट, हाथ खड़ा करके, गदाधारी भी हाथ खड़ा करके, काफी सारे लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं. हाँ जी, तो जस्ट नीचे बताइए, क्यों डिसइंटरेस्टेड नहीं लगता? बताओ, क्यों बोरिंग नहीं लगता? सर क्योंकि हर टाइम कुछ नया सीखने को मिलता है, वही रिपीटेटिव चीजें नहीं होती है. हर टाइम हमें कुछ नया सीखने That's wonderful. That is very nice. That's a very good point. Note down. Learning, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो कुछ नया add on होता है. Okay, that's wonderful. Anything else? और disinterested क्यों नहीं लगता? क्या मिलता है यहाँ से? सेशन से क्या मिलता है आप लोगों को? सोचो जरा. हमने लर्निंग की तो बात की, उसके अलावा क्या मिलता है? ग्रोथ मिलती है. एब्सोल्युटली, ग्रोथ मिलती है. किसी को ग्रोथ मिलती है, किसी का एवोल्यूशन होता है, किसी का एक्सपेंशन होता है, किसी को सुकून मिलता है, किसी का स्ट्रेस कम हो जाता है, करेक्ट? किसी को लर्निंग मिलती है. जब आपको इंस्टेंटली किसी काम को करने से कुछ मिल जाता है, तो आप दोबारा उसे करना चाहते हो. सिंपल. सो द ब्रेन वर्क्स ऑन इंस्टेंट प्लेजर एंड अवॉइडिंग इंस्टेंट पेन. रुकिए तराली जी, एवरीवन म्यूट.
So the brain works on one fundamental principle. जो आपका brain है, it's working on only one fundamental principle: instant pleasure and avoiding instant pain. जब आप सेशन में आते हो, आपको इंस्टेंट प्लेजर कुछ महसूस होता है, किसी को सुकून महसूस होता है, किसी का स्ट्रेस खत्म हो जाता है, किसी को ग्रोथ महसूस होती है, किसी को लर्निंग महसूस होती है, कुछ मिल रहा है। ऐसी जो काम कर रहे हो, अगर उससे इमीडिएटली कुछ मिलना शुरू हो जाएगा तो दोबारा करने का मजा आएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम वो काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि जरा सी कोई पेन होती है किसी काम के अंदर। जैसे सुबह सुबह का 5M ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्यों शुरू किया था, उसके अंदर एक कंडीशन थी, क्यों उठना, क्यों बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम 20-20 साल से नहीं उठे हैं, 15-15 सालों से नहीं उठे हैं, लेकिन जैसे हमने 5M ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन किया हम उठना शुरू कर दिए। क्यों? सोचो, कौन बता सकता है इस बात को? आप में से कुछ लोग 5M ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के पार्टिसिपेंट रहे हैं, बताइए तेजस्विनी, कैसे सबने उठना शुरू कर दिया? क्योंकि सर कोई रिकॉग्नाइज करने वाला था, कोई हमारे साथ वो चीजें करने वाला था। सबसे मेन फर्स्ट तो यही था कि अच्छा सब उठ रहे हैं और हमने किसी को कमिट किया है, दैट टू अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, हमने कमिट किया है, तो वो तो हमारा बनता है कि नहीं यार उठना तो पड़ेगा, अब तो बोल दिया है। और उसके बाद वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छे लगने लगे। उसके बाद तो जर्नी वहां स्टार्ट हुआ, बट फर्स्ट तो इम्प्रेशन तो हमने बोल दिया ना। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सो दो चीजें बड़ी अच्छी कही। पहली बात, जब पहले दिन उठे तो आपकी स्टोरी को या आपको रिकॉग्निशन मिली। रिकॉग्निशन का मतलब है इंस्टेंट प्लेजर। तो ब्रेन के दिमाग में बैठ गया, कुछ इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है यहाँ से उठने से रिकॉग्निशन मिलती है, वैलिडेशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, एप्रिसिएशन, कुछ तो मिल रहा है जो पहले नहीं मिल रहा था। फिर सब उठते हैं, सबको उठता हुआ देखते हैं, तो आपको लगता है कि हमने कमिटमेंट की है, अगर इस कमिटमेंट को मैंने पूरा नहीं किया तो शायद सबके सामने बेइज्जती होगी। तो क्या होता है, जो बेइज्जती बाद में आपको लगता है कि होगी, इंसान सोचता है थोड़ा सा इंस्टेंट पेन बर्दाश्त कर लेते हैं, बाद की बेइज्जती बहुत बड़ी है, तो वहां पे ज्यादा मुश्किल आएगी, वहां पे ज्यादा हर्ट होगा, वहां पे ज्यादा पेन होगा, वहां पे ज्यादा ह्यूमिलिएशन होगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेन ही तो है, सुबह उठने का बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब एग्जैक्टली लाइक कि अगर नचपल्ली की ट्रॉफी मेरे सामने है, तो इस समय चोटें लग रही हैं, खरोंचें आ रही हैं, पेन हो रहा है, शोल्डर पेन कर रहा है, लेकिन ये इंस्टेंट पेन है, अभी छोटा सा पेन है। लेकिन बाद का जो पेन है कि अगर मैंने आज की इस मोमेंट पे अगर मैंने वो पेन बर्दाश्त नहीं किया और मैंने हाथ टेक दिए, तो उसके बाद जो नचपल्ली की ट्रॉफी है वो मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो वो पेन कितना बड़ा होगा जिंदगी में। करेक्ट? जैसे जिम जाते हैं ना, जिम की आई एम श्योर हर कोई जाना चाहता होगा जिम। किसी की बॉडी देख लेते हैं और लगता है यार वाह क्या बॉडी, ब्रिलियंट, मजा आ गया। करेक्ट? उसका बिफोर आफ्टर देखते हैं और आपको लगता है, आपके अंदर इंस्पिरेशन आ जाती है, यू वांट टू गो टू द जिम इमीडिएटली, राइट? आप जिम की एनरोलमेंट करवाते हैं, मेंबरशिप करवाते हैं, बैग वैग लेते हैं, पानी वानी भरते हैं। अगले दिन जिस दिन जिम जाना होता है ना, उससे एक रात पहले आपको नींद नहीं आती कि अब आई एम फोकस्ड, आई विल अचीव दिस टारगेट नो मैटर व्हाट हैपेंस, राइट? आप करते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी पेन भी होती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। फिर धीरे धीरे 3-4 दिन, फिर जैसे जैसे वो पेन थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट बढ़ना शुरू होता है रोज, तो आप क्या करते हैं, यार छोड़ना यार, बहुत ज्यादा पेन है, बात की बाद में देखेंगे। आप अपने दिमाग को किसी ना किसी तरह कहानियां बना के समझा देते हैं, छोड़ना है, जैसा है वैसा ही सही है, बिकॉज यू कांट एम्ब्रेस द इंस्टेंट पेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर सोचो कि हमने 10 लोगों के सामने इस बात की कमिटमेंट दे दिया कि 3 महीने बाद तुम देखना मेरी बॉडी क्या होगी। अपने 10 दोस्त हैं जिनके साथ रोज उठते बैठते हो, और ऐसी बातों बातों में फितूर में आके आपने बोल दिया कि देखना 3 महीने के बाद मेरी बॉडी होगी, आई विल हैव दिस स्ट्रिप्ड बॉडी एंड एवरीथिंग, राइट? वो कहता नहीं नहीं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप कहते हो कि नहीं हो पाएगा, आई विल डू इट, यू सी आई व्हाट कैन आई डू, एंड देन यू स्टार्ट द जिम। 1 दिन पेन, 2 दिन पेन, 3 दिन पेन, 4 दिन पेन, फिर आपको लगता है छोड़ देते हैं। फिर अचानक से दिमाग जागता है, नहीं वेट, वो जो पेन उस दिन होगी ना, जब सब मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, तो वो बहुत बड़ी है, तो बेहतर है कि अभी का पेन बर्दाश्त कर लें। या तो आपके सामने एक बड़ा टारगेट हो। देखो समझो जरा बात को, ब्रेन वर्क्स ऑन ओनली पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। ब्रेन का जो बेसिक मैकेनिज्म है सिर्फ पनिशमेंट में घूमता है और रिवॉर्ड में घूमता है। या तो उसे किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड मिल जाए तो वो आगे आपको पुश करता है, फिर लेजीनेस अपने आप खत्म हो जाएगी।
रिवॉर्ड मतलब किसी भी प्रकार का कोई रिवॉर्ड, जैसे हम लोगों ने रिवॉर्ड रखा था कि जो 21 दिन करेगा ना 5am ट्रांसफॉर्मेशन, उसको मेरी तरफ से एक पर्सनलाइज्ड वीडियो मिलेगा। तो क्या होता है ना, एवरी डे यू वेक अप टू दैट listen, if I complete 21 days I will get a reward, I will get a recognition. It's going to give my self confidence up, it's going to enhance my self esteem, enhance my self respect, right? कि सर के पास से एक वीडियो मिलेगा। एक और हम लोगों ने पनिशमेंट इसके साथ अटैच की थी कि अगर आप मंडे टू सैटरडे सुबह नहीं उठे तो आपको जूम का लिंक नहीं मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता था। तो आपको लगता है हाँ यार पनिशमेंट है, क्योंकि साग लेने का सेशन है, वो सेशन हमें मिल सकता है, अगर हम उठेंगे तो ही मिलेगा, नहीं उठेंगे तो नहीं मिलेगा, तो वहां पे एक पनिशमेंट हो जाती है। तो बहुत डीप में इस बात को समझना है कि ब्रेन का सिंपल मैकेनिज्म है इंस्टेंट प्लेजर की तरफ आपको भटकाएगा और इंस्टेंट पेन अवॉइड करेगा। आपको क्या करना है, या तो एक बड़ा प्लेजर आपके सामने दिख रहा हो, जैसे हाइपोथेटिकली मुझे नच की ट्रॉफी सामने दिख रही थी, करेक्ट, एंड आई नो दैट प्लेजर इज वे बिगर देन दिस स्मॉल प्लेजर। क्या है स्मॉल प्लेजर, कि अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो ट्रेनिंग के सामने जैसे मुझे प्लेजर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम की स्वीट्स खाना, मीठा खाना, बॉडी को खराब कर लेना, नहीं, ऑल दीज थिंग्स साइड में। सामने बड़ा प्लेजर है, सामने टारगेट है, क्योंकि उस मोमेंट पे जब मैं अचीव करूंगा वो टारगेट को, तो टारगेट से जो रिकॉग्निशन मिलेगा वो कहीं बड़ा प्लेजर है। तो जब हमारा फोकस उस बड़े प्लेजर की तरफ होता है तो छोटे प्लेजर साइड में हो जाते हैं। और इसी तरह जब फोकस बड़ा होता है तो क्या होता है, ये जो इंस्टेंट पेन हो रही है ना इस समय, वो इंस्टेंट पेन इंसान एम्ब्रेस कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि यार एंड पॉइंट पे मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं पहुंचा वहां तक तो कितनी बड़ी पेन होगी कि जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने थोड़ी सी पेन, छोटी सी पेन, छोटी सी चोटें, छोटी सी दर्द, छोटी सी ब्रूजेस के चक्कर में फंस गया और मैंने उस बड़ी चीज को हाथ से छोड़ दिया। उसका जो रिग्रेट होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, ब्रेन विल ऑलवेज वर्क ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो या तो उस छोटे से प्लेजर में अपने अपने ब्रेन को अटैच करके आगे बढ़ते चलो, कि इन द सेंस जैसे सपोज मैंने एक वीडियो क्रिएट किया, करेक्ट, अब क्या होता है, आप वीडियो क्रिएट करते हैं, आप वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, किसी का भी एक कमेंट आ जाता है कि यार इट्स अ नाइस वीडियो, आपके लिए भी किसी के लिए भी, तो आपको क्या होता है, इंस्टेंट एक मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज आपको इंस्टेंट प्लेजर मिला। वो इंस्टेंट प्लेजर आपको अपने आप एक वैल्यू देता है कि आगे कंटिन्यू करो, करेक्ट। लेकिन अगर उसमें कोई इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता तो आप 2 दिन करते हो, तीसरे दिन छोड़ देते हो, फिर आपको लगता है छोड़ना बोरिंग काम है, ट्राई किया नहीं हुआ, बेकार है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो ब्रेन का फोकस है इंस्टेंट प्लेजर और अवॉइडिंग इंस्टेंट पेन का, इसको थोड़ा रिवर्स कर देना है कि वी विल लुक फॉर अ बिगर प्लेजर एंड वी विल एम्ब्रेस द इंस्टेंट पेन। क्योंकि इस समय अगर थोड़ी सी पेन बर्दाश्त कर ली तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद की जो पेन होगी, सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ने की, सारा समय निकलने की, सब चीजें खत्म होने की, तो वो कहीं ज्यादा होगी। जब टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है ना, और उसके बाद जब जिंदगी हाथ से निकल जाती है तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है जिंदगी के अंदर कि देखो समय निकल गया। फिर माँ बाप भी कहते हैं, भाई बहन भी कहते हैं, रिलेटिव्स भी कहते हैं, हर कोई ये कहता है कि देखो टाइम था, कर लेते उस समय, लेकिन उस समय में इंस्टेंट प्लेजर के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। तो इंस्टेंट प्लेजर को थोड़ा सा छोड़ना है आपको, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर में अगर अटक जाओगे तो आगे का जो विजन है, आगे का जो फोकस है, आगे का जो गोल है, वो अपने आप साइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान इसीलिए इंस्टेंट प्लेजर में जाता है बार बार, क्योंकि ब्रेन का मैकेनिज्म वही है, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो इंस्टेंट प्लेजर को थोड़ा सा साइड में करेंगे। इंस्टेंट पेन अगर हो रही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसको एम्ब्रेस कर लेंगे तो बाद की पेन नहीं होगी ना। अगर आज मैं कंसिस्टेंसी से रोज उठता रहता हूँ, मुझे इंस्टेंट पेन हो रही है कि सुबह 5 बजे उठने में, नींद को त्यागने में, but I know what I will get over a period of time by waking up at 5 a.m. for the next 200 days. Correct? जो मेरा दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो मेरे के अंदर, जो मेरा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है, जो एंजाइटी खत्म हो जाती है, जो सेल्फ लव जागृत होता है, जो बैलेंस आता है, जो सेंटर्डनेस आती है, जो स्पेस मिलती है, जो सब चीजें करने को मिलती हैं, वो कहीं ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू छोटा सा नींद का त्याग। क्योंकि कुछ मिलता है ना, कुछ बड़ा मिल रहा है ना अपने को, जब वो मिल रहा है
तो आपको धीरे धीरे इनकरेज करना शुरू कर देता है। हाँ जी साहिल बोलिए। सर लाइफ में ना छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स में इंसान फंसना छोड़ देता है। जो एक ग्रोथ, जो एक्सपेंशन आपने हमें फर्स्ट डे समझाया था कि एक्सपैंड हम कैसे करते हैं, तो वो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है एक पर्सन का, मेंटली भी एंड ऑब्वियसली फिजिकली। तो आपकी बॉडी में चेंजेस आते ही हैं सुबह उठने से, बट एक मेंटल एक्सपेंशन, एक हमारा जो ऑरा है चारों ओर, मतलब हम हर चीज को इतना पॉजिटिवली देखते हैं विद द पीपल अराउंड अस एंड विद एवरीवन। एक पेशेंस, मतलब आपने इतने सारे पॉइंट्स लिखवाए थे इन अ नटशेल, आई वुड से कि you totally become a different person which you were earlier and which you are right now। उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एस्टीम हमारी इतनी बढ़ाता है, एंड ईच डे वो ग्रोथ थोड़ी 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 होती जाती है। तो हमारे को वो एक मोटिवेशन जो है वो भी साथ साथ मिलता रहता है। तो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब, आई वुड से दैट इज अ वे टू अ सस्टेनेबल ग्रोथ। Yes, that's a very interesting point. What happens is every day when you avoid the instant pleasure and embrace the instant pain, there's a sign of growth that happens. When that small growth happens, that small growth, that small baby step, that small evolution, that small expansion, that small enhancement encourages you to wake up again in the morning, encourages you to take another step in the morning. So वो जो छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर होती है ना, एक चीज हम समझ नहीं पाते। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना हम ट्रांसफॉर्मेशन एकदम 180 डिग्रीज इमीडिएटली चाहते हैं। हम चाहते हैं आज हम ए पॉइंट पे हों, हम 15 दिन के अंदर बी पॉइंट पे पहुंच जाने चाहिए, 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा महत्वता होती है बेबी स्टेप्स की। इन बेबी स्टेप्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जब 5 दिन उठते हैं या 3 दिन उठते हैं, 4 दिन उठते हैं, तो आपके अंदर कुछ हो रहा है। वो शायद आपको इमीडिएटली दिख नहीं रहा है, उसको फिजिकली आप देख नहीं सकते, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। जब अंदर कुछ हो रहा होता है, उसको और कंटिन्यू करते हो, तब चेंज नजर आना शुरू होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जब हम जिम जाते हैं ना, जब जिम की एनरोलमेंट करते हैं, किसी ट्रेनर को हायर करते हैं, तो एक दिन पहले दिन जाते हैं, पहले दिन ही सारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेटिव दिखनी नहीं शुरू हो जाती। होता क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब 15वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन, 30वें दिन कोई ऐसा दिन होता है जब अपने आप को देखते हो, कहते हो यार बॉडी ग्रो कर गई अचानक से, हमें तो पता ही नहीं लगा। क्योंकि every day one small baby steps are happening, one small baby steps are happening. Those baby steps are extremely important part of transformation, और उन baby steps को ना महत्व नहीं देते। हमें लगता है एकदम ही पहुंच जाना चाहिए। आपके लिए वो बेबी स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है हर इंसान की जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन के। आज जहां पे भी शेयर एंड ग्रो है, उसके लिए बहुत सारे सालों के रोज के बेबी स्टेप्स हैं, रोज के बेबी स्टेप्स हैं, तब जाके यहाँ तक पहुंचते हैं। रोज के सेशंस हैं, रोज की लर्निंग है, रोज के वीडियोस हैं, रोज का क्रिएशन है, रोज के एडिट्स हैं, रोज के ग्राफिक्स हैं, रोज का टीम का वर्क है। एवरीथिंग हैपनिंग every day, every day, every day, every day, every day. And then one day somebody wakes up and says, how did this happen? It just happened through consistent, continuous, small baby steps. So do not underestimate the power of these baby steps that you take each day. So होता क्या है, जैसे हम वो बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब हम आते हैं तो हमें लर्निंग मिलती है। बोर्डम को किल करने का सबसे आसान तरीका, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने बात की थी डिसइंटरेस्ट और बोर्डम इज द कॉज ऑफ लेजीनेस, करेक्ट? अब बोर्डम को किल करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि जो बोरिंग काम कर रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बना लो, तो लेजीनेस खत्म हो जाती है। कि अगर आपको किताब पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है, करेक्ट, या पढ़ाई करना बड़ा बोरिंग लगता है, तो क्या हम उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? सोचो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, पहले जब हम पढ़ते थे तो किताबों में पढ़ते थे, क्लासेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी बोरिंग होती थी किताबें भी। आजकल तो वो बायजूस में देखता रहता हूँ, इतने सारे एनिमेशन होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, देख देख के बच्चे इतने इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो जाता है दैट यू वांट टू लर्न अबाउट इट। होता है ना? तो कोई ना कोई इसको इंटरेस्टिंग बना रहा है, क्या हम इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते अपने तरीके से? जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे इफ आई talk about a film which is very beautifully directed and very beautifully edited, it's called Super 30, मैथमेटिक्स के ऊपर वो फिल्म है। किस तरह से वो ऋतिक रोशन जो उनका टीचर है, कैसे मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बना देता बच्चों के लिए कि बच्चे हर जगह मैथमेटिक्स देखते हैं।
तो क्या होता है, वो जब इंटरेस्टिंग बन जाता है तो फिर बोर्डम नहीं आता। जब बोर्डम नहीं आता तो लेजीनेस नहीं आएगी, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। जो मजा है ना, इस मजे का तो खेल है सारा का सारा। जब यहाँ पर आते हो किसी प्रकार को कोई मजा आता है, कुछ मिलता है, जब कुछ मिलता है, एंजॉयमेंट होती है, फन होता है, इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनिंग हो जाता है, तो फिर बोर्डम कैसे होगा? जब मूवी देखते हो अपने मनपसंद के नेटफ्लिक्स अमेजोन पे तो बोर होते हो। अपना जॉनर नहीं देख रहे होगे तो बोर होगे, जब अपना जॉनर देख रहे होगे तो बहुत मजा आ रहा होगा। किसी को हॉरर बड़ा पसंद आता है, किसी को थ्रिलर बड़े पसंद आते हैं, किसी को कॉमेडी पसंद आती है। जो जो अपना अपना जॉनर की फिल्म देखता रहता है उससे बड़ा मजा आता है। तो जिस चीज में मजा आता है उसमें बोरिंग कैसे होगा? आपको हॉरर पसंद आता है लेकिन मुझे हॉरर पसंद नहीं आता, तो जब मैं हॉरर देखूंगा शायद मैं ऐसे कर रहा हूँ, करेक्ट? लेकिन अगर आपको हॉरर पसंद आता है तो आप ऐसे सीट पे चिपक के बैठोगे, यू आर कंप्लीटली फोकस्ड अबाउट इट, बिकॉज आपको उसमें बहुत मजा आ रहा है। तो या तो बोरिंग चीज को मजेदार बना लो, तो अपने आप लेजीनेस खत्म हो जाएगी। या फिर अगर सर्वाइवल में फंसे हुए हो और कोई बोरिंग काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, करेक्ट, कोई बोरिंग काम हमें करना पड़ता है, मजबूरी है कि ये जॉब करनी पड़ रही है, इसमें से सर्वाइवल आता है, घर के पैसे आते हैं, फाइनेंस है, इश्यूज है, 50 चीजें हैं, मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते उसके साथ कुछ समय अपने लिए बिता सकते हैं जिसमें ज्यादा मजा आए? हाइपोथेटिकली अगर 9 to 5 आपको एक जॉब करनी है, इस पे भी आऊंगा मैं, जॉब वाली बात है भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। 9 to 5 अगर आपको जॉब करनी है, उसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आता और काम करने का मन नहीं करता, लेकिन सर्वाइवल वहां से सेट है, तो 5 बजे जब आप घर पे आते हो तो क्या आप 2 घंटे 3 घंटे ऐसे काम को नहीं दे सकते जिसमें आपको बहुत मजा आए, ताकि यू कैन बैलेंस योर डे सो दैट यू लुक फॉरवर्ड टू दोस 3 hours एवरी डे व्हेन यू कम बैक होम। दोस 3 hours कुड बी एनीथिंग। कोई लिखता है, कोई पढ़ता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई गोल्फ खेलता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई वॉक पे जाता है, एनीथिंग विच गिव्स यू some kind of pleasure. So what happens is, आप क्या करते हो फिर? 9 to 5 जॉब करते हो, you just look forward to, throughout the day you look forward to that 5:15 a.m. 5:15 p.m. when you will reach home and you will spend time with yourself and you will enjoy it, क्योंकि आप इस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी कहा है, खलील गिबरान साहब ने बड़ी कमाल की बात की है रिगार्डिंग वर्क। जो काम है ना, जिस काम के चक्कर में हम बोरिंग 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 करते रहते हैं, हमें मजा नहीं आता, उन्होंने बार बार एक ही बात की है कि बेटा, या तो जिंदगी में वही काम करो जिसमें मजा है, या फिर जो कर रहे हो ना उसमें मजा ढूंढ लो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता जिंदगी में। होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम फंस जाते हैं। जो कर रहे हैं उसमें भी क्रिबिंग कंप्लेनिंग चलती रहती है हमारी, करेक्ट, उसमें परेशान रहते हैं। तो जो कर रहे हैं उसमें क्रिबिंग कंप्लेनिंग नहीं करने, फिर उसमें अच्छे से अच्छा ढूंढ लेना और उसी में मजे करने। या फिर वही काम करो जिंदगी में जिसमें मजा आता है, फिर दूसरा कुछ करो ही मत। होता क्या है, जब बीच में अटक जाते हैं तो फंस जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो बड़ी कमाल की बात की, यू मस्ट, ऑल ऑफ यू मस्ट रीड दिस बुक विच इज कॉल्ड द प्रॉफिट। इट्स अ स्मॉल बुक, इट्स अ वेरी थिन बुक, 90 पेजेस की किताब होगी। इट्स बाय खलील गिबरान साहब, द वेरी वेरी बिग पोएट एंड फिलोसोफर। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है that people who don't love their work, people who don't love their work should receive alms, मतलब उन्हें भीख मांगनी चाहिए उन लोगों से जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। People who don't love their work should receive alms from people who love their work। इसका मतलब ये है कि काम से मोहब्बत करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको काम से मोहब्बत है ना, तो आपका कोई कंपटीशन नहीं हो सकता जिंदगी में। अगर मुझे मोहब्बत है अपने काम से, तो फिर मेरे से कोई compete कर नहीं पाएगा, क्योंकि फिर 24 घंटे 365 दिन, हर लम्हा हर सेकंड मेरा जहन, मेरी आत्मा उस काम के अंदर है, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, एंजॉय इट, आई लव इट, आई एम डीपली कनेक्टेड एंड सिंक्रोनाइज्ड विद व्हाट आई एम डूइंग। फिर उस इंसान से कैसे कंपटीशन होगा जो 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करता है मजबूरी में? क्या आपका कोई कंपटीशन हो सकता है उस इंसान से? एक इंसान यहाँ पर है जो 5-6 घंटे के लिए अपना छोटा सा काम करता है और कहता है काम खत्म करो और आगे बढ़ो, और एक है जिसे काम से प्यार है, मुझे मैथमेटिक्स से प्यार है और अकाउंट से प्यार है। तो क्या आप उससे compete कर सकते हो जो 5-6-8 घंटे के लिए आता है, अपनी जॉब करता और निकल जाता है? आप किस लेवल पे होगे और वो किस लेवल पे होगा, सोच लो। कभी कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता, because nobody will be ever be able to compete with you because you love it so much. Okay,
So खैर, that's a different topic. Coming back to the same thing. So one second. So या तो बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बना लो, या बोरिंग काम के साथ कुछ इंटरेस्टिंग जोड़ लो. ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, so that you can look forward to that every day. तीसरा बहुत सिंपल है, या तो बोरिंग काम के साथ कुछ सीखना शुरू कर दो, उससे कुछ सीखने का प्रयास करो कि क्या ये काम बोरिंग है, मुझे पता लग रहा है, मजबूरी में करना पड़ा है, सर्वाइवल में, लेकिन जिंदगी में याद रखना, कोई भी चीज की हुई, कोई भी कर्म किया हुआ, कोई भी जॉब की हुई कभी भी वेस्ट नहीं जाती अगर आप में सीखने की इच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घूम के जिंदगी का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ ही जाएगा. होता क्या है, उस समय के लिए आपको बड़ा बोरिंग लग रहा है, डिसइंटरेस्टेड लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसमें से कुछ सीख लोगे और वो सीख आपको जिंदगी में काम आ जाएगी, क्योंकि आएगी ही आएगी. हर सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा ही हुआ है. आप अभी नहीं देख सकते, कुछ सालों के बाद देख पाएंगे. स्टीव जॉब्स की एक बड़ी कमाल की हार्वर्ड कमेंसमेंट स्पीच है. यू गाइस कैन सी इट, वेयर ही सेज, व्हेन आई लुक बैकवर्ड्स देन आई रियलाइज कि ऑल द डॉट्स ऑफ माय लाइफ आर एक्चुअली कनेक्टेड. उन्होंने कई साल पहले जब वो कॉलेज में थे तो कैलीग्राफी सीखी थी. उस समय कैलीग्राफी की कोई जरूरत नहीं थी. कैलीग्राफी जो उन्होंने सीखी कई सालों के बाद, जब मैकिन्टोश का डिस्कवर हुआ, जब मैकिन्टोश बनाया गया, क्रिएशन किया गया, तो मैकिन्टोश और जो बिल गेट्स का विंडोज था, उसमें सिर्फ फर्क इतना था कि यहाँ के जो फोन्ट्स थे ना मैकिन्टोश के, वो बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग थे एज कम्पेयर टू द सिंपल फोन्ट्स दैट माइक्रोसॉफ्ट हैड. Why? Because Steve Jobs had learned calligraphy in college at that point of time. So it got connected. And because he had learned calligraphy, he could create an interesting fonts in Apple. And that's why Apple germinated and started. So जो भी आपने सीखा है कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये तो लिख के ले सकते हो. मैंने अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेला, ऐसा लगता होगा कि कहाँ, चलो उससे पहले जाते हैं. पहले मैंने अपनी जिंदगी में टॉपर था, मैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में नहीं, स्कूल में टॉपर था थ्रू आउट. वहां से बहुत सारी चीजें सीखी. टॉपर होने के बाद स्कूल के अंदर कुछ मोनो एक्टिंग कंपटीशन चलते रहते थे, वहां पार्टिसिपेट किया, डांस करता रहता था, वो पार्टिसिपेशन किया, कुछ ना कुछ करते गए. फिर वहां से क्रिकेट, एक टाइम था जब क्रिकेट ज्वाइन किया तो पढ़ाई पूरी की पूरी छोड़ दी. तो वो लोगों को लगता होगा यार पढ़ाई बिल्कुल अलग, टॉपर, क्रिकेट बिल्कुल अलग, फिर उसके बाद एक्टिंग बिल्कुल अलग. तीनों चीजें कंप्लीटली अलग अलग हैं, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ सिखाते ही चली गई. जो एजुकेशन ग्रहण की थी, जो ज्ञान ग्रहण किया था स्कूल में, जो समझ आई थी, वो कहीं ना कहीं काम आई. वो एक्टिंग में भी काम आई, वो क्रिकेट में भी काम आई, क्योंकि नाउ यू कुड एनालाइज, नाउ यू कुड सी, नाउ यू कुड अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. क्रिकेट से बहुत सारी चीजें सीखी, whether it's bouncing back spirit, whether it's team spirit, whether it's being together, whether it's being a leader on the ground, whether it's being a captain on the ground, ये सब क्रिकेट से सीखा. उसके बाद एक्टिंग में how to understand human behavior, how to perceive a human behavior, how to understand yourself, ये सारी की सारी चीजें एक्टिंग से सीखी. how to let go everything in the moment. तो जिंदगी में कुछ भी सीखा हुआ कभी खराब नहीं जाएगा. तो अगर कहीं बोर्डम में फंसे हुए जिसकी वजह से मन नहीं करता, तो वहां से कुछ सीखने का प्रयास करो. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. हमने बात की थी द ब्रेन विल ऑलवेज वर्क ऑन इंस्टेंट प्लेजर एंड अवॉइड इंस्टेंट पेन. करेक्ट. जो भी आपको कुछ करना है, हो क्या रहा है, मुझे लगता है हम सबके साथ ना, हमारे ड्रीम्स बहुत हैं, ख्वाब बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, तमन्नाएं बहुत हैं, डिजायर्स बहुत हैं, लेकिन विजन नहीं है हमारे पास. विजन और मिशन अलग होता है. ड्रीम्स, डिजायर, विशेस अलग होती हैं. इच्छाएं हैं बहुत सारी, लेकिन जरा से कोई परेशानी आती है उन इच्छा में तो हम फट से छोड़ देते हैं सारी की सारी चीजें. विजन का मतलब है व्हेन यू सी थिंग्स एज दे आर हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हेन यू सी देम एज रियल एज यू कैन सी. ड्रीम्स तो सिर्फ सपने होते हैं, ख्वाब, इच्छाएं, डिजायर्स तो हर इंसान के अंदर जागृत होती हैं. क्या विजन है आपके पास? क्या आप कुछ देख सकते हो which you are seeing every day happening in your life, and you are seeing every day you moving one step towards your vision. Vision seems and looks as if it's absolutely real in front of you. You see it culminating. आपको दिखता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ. जब विजन आ जाता है ना जिंदगी के अंदर, तो विजन आपको इंस्पायर करता है. वो सारे आपके इंस्टेंट प्लेजर छुड़वा देगा, सारे इंस्टेंट पेन को बर्दाश्त करवाएगा, क्योंकि उसको पता है ये विजन जो है, जैसे एक टारगेट है बहुत बड़ा. जैसे मैं नच की बात करूँ, अगर नच का भी एक टारगेट था, तो टारगेट है ना,
कि ट्रॉफी तो मिलेगी 5 महीने के बाद, ट्रॉफी मिलेगी 5 महीने के बाद, लेकिन 18-18 घंटे तो रोज डांस करना पड़ेगा। तो क्या है, सामने एक विजन है। जब विजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, होने देते हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलेगा ना वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ देते हैं और हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इस बात को सब के सब थोड़ा ध्यान रखें, समझें इस बात को। हम सभी आजकल बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते हैं। क्या है ना, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री ने आपको बहुत सारी चीजें बेचती है, रोज रोज बेचते हैं। रोज हर चीज आपके लिए टेक्नोलॉजी आसान करती चली जा रही है, क्योंकि चीजें आसान होती जा रही है, इस वजह से हम लेजी होते जा रहे हैं। अब क्या है, नीचे सोसाइटी स्टोर है, वहां सोसाइटी स्टोर तक भी नहीं जाना है, काम करते हैं ऐप से ही ऑर्डर कर देते हैं। कौन इतनी मेहनत करेगा नीचे जाकर, चाहे 2 कदम ही चलना हो। लेकिन क्या वो 2 कदम आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या वो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है? सोचो जरा। क्या आपके मेंटल पीस के लिए जरूरी नहीं है कि जब आप रोड पे उतरते हो, नीचे जाते हो, 4 लोगों से मिलते हो, आपका फिजिकल इमोशनल कनेक्शन होता है, कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है? वो है जरूरी, लेकिन हम उन सब चीजों को नकार देते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। When things become easier, when your survival becomes easier, we also become lazy। कि जब आपको पता है आपके घर पे छत है, खाना तो मिल ही जाएगा, कपड़े हैं, तो ठीक है, आराम से चेक करते हैं, जिंदगी आराम से बिताते हैं। लेजीनेस इस वजह से भी आती है क्योंकि आराम की जिंदगी चाहिए, बस हर चीज में आराम चाहिए, हर चीज में, किसी चीज में कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो एक्चुअली हमने मेहनत करना छोड़ दिया है, मेहनत करना ही नहीं चाहते, हम आसान चीजें चाहते हैं। जिसका सर्वाइवल सेट है ना, वही इंसान लेजी होता है। जिसका सर्वाइवल सेट नहीं, वो लेजी हो ही नहीं सकता। जिसको यही नहीं पता कि आज रात का खाना कहाँ से आएगा या कल का खाना कहाँ से आएगा, वो कहाँ से लेजी होगा? वो उसकी भागम दौड़ तो जिंदगी में खत्म ही नहीं होगी। वो तो नीचे उतरेगा, यहाँ जाएगा, वो काम ढूंढेगा, वो काम ढूंढेगा, वहां जाएगा, वहां से पैसे लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई खाना नहीं मिलेगा। आप सबको पता है कि खाना तो मिल ही जाएगा, आपको पता है कपड़े तो मिल ही जाएंगे, जरा सी फरमाइशें करोगे, कोई ना कोई तो दिलाई देगा, कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। चाहे बॉयफ्रेंड दे देगा, नहीं तो हस्बैंड दे देगा, नहीं तो पापा दे देंगे, नहीं तो मम्मी दे देंगे, कोई तो दे ही देगा, कहीं ना कहीं से तो सब हल हो ही जाएगा। सर्वाइवल सेट है, इसलिए लेट्स बी लेजी। कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परसों कर लेंगे। जिस दिन सर्वाइवल पे बात आएगी ना, उस दिन कल परसों नहीं, उस दिन होगा आज ही करना है। शायद पता है, कुछ लोगों की आदत होती है डेट्स पे डेट्स पे डेट्स लेने की, क्योंकि उनको डेट्स भी शायद पुश करते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइवल पुश नहीं करा तो उनको डेट्स पुश करते हैं कि रोज काम करना, रोज काम करना, रोज काम करना, रोज काम करना, रोज काम करना। हर कोई अपनी अपनी साइकोलॉजी में काम कर रहा है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज, फर्स्ट हैव अ विजन, क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ। वो कह रहा है हमारी जिंदगी में कोई पर्पस और विजन नहीं है, तो हम ऐसे भटकते चले जाते हैं। बस इच्छाएं हैं, बस डिजायर्स हैं, बस ख्वाब है, और वो नहीं भी पूरा होता ना तो हमें दुख नहीं होता। यहाँ पे पेन होगी ना जिस दिन, तब तो जाके लेजीनेस खत्म होगी। यहाँ पे जब रिग्रेट होगा कि यार सामने अपॉर्चुनिटी थी यार, अगर मैंने 6 महीने या 15 दिन या 25 दिन इस पर ध्यान दे दिया होता तो आज इतना मुझे तड़पना और परेशान नहीं होना पड़ता। हमें इस बात को कोई रिग्रेट नहीं होता, हम अपने आप को समझा लेते हैं, बिकॉज ब्रेन क्या है ना, ब्रेन क्या है, तो ईगो है एक्चुअली, विच इज अ फॉल्स सेंस ऑफ इमेज, जो आपको प्रोटेक्ट कर लेती है हर बारी। कोई ना कोई बहाने बना के खुद को आप साइड हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, निकल जाते हैं। अपने आप को हजारों जस्टिफिकेशन दे सकते हैं आप, कि नहीं उठा था सुबह 5 बजे, एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं उठा सुबह 5 बजे, रात को बहुत लेट हो गया था, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी मम्मी की तबीयत भी खराब थी, थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा हो गया, थोड़ा ये हो गया। आप अपने आप को बहुत सारी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। और वो जस्टिफिकेशन क्या है? वो एक्चुअली ईगो, एक और डीपर लेयर। ईगो विल ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट यू। माइंड एंड ईगो रन्स टुगेदर। माइंड का अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बिना ईगो के। जिस दिन ईगो ढह जाएगी उस दिन माइंड भी ढह जाएगा, जिस दिन माइंड ढह जाएगा उस दिन ईगो भी ढह जाएगी। माइंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ईगो के साथ है। तो ईगो क्या करती है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है किसी भी फॉर्म में। तो क्या करते हैं, वो माइंड को एक सिग्नल देती है, माइंड एक बहाना ढूंढता है, और वो
बहाना आपको दिया जाता है, फ्री को सेटिस्फाई हो जाती है। वो बहाना क्या, कुछ नहीं, रात को बड़ा लेट हो गया था, अपनी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी या मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा फर्ज तो बनता है मम्मी का ख्याल रखना, तो वो तो सर्वोपरि है ना, मेरा उठना ना उठना वो तो बात की बात है। पहले मम्मी की तबीयत खराब थी तो मम्मी को ठीक करना ज्यादा जरूरी, तो हम क्या करते हैं, we give a justification to ourselves and mind and ego start to play games, and then जो आपका धर्म है वो छूट गया पीछे पीछे, आपका विजन है जो छूट गया पीछे, आपका कर्म पीछे छूट गया, और फिर आप इस चक्रव्यूह में अटैच हो गए, फंस गए। फिर क्या करोगे? फिर एक दिन से दूसरा दिन का कुछ और एक्सक्यूज खुद को दिया जाता है, तीसरे दिन का कुछ और, चौथे दिन का कुछ और, पांचवें दिन का कुछ और। ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूजेस आप ही देते हैं, कभी कभी एक्सक्यूजेस मेरे दिमाग में भी आते हैं, आई वोंट डिनाई दैट, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, बट आई एम सेइंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड देन कम बैक अगेन। हो गया, एक दिन गलती हो गई, एक दिन एक्सक्यूज हो गया, एक दिन विजन से भटक गए, क्योंकि जिंदगी है, कभी कभी भटक जाता है इंसान, भटक गया तो क्या होगा, अगला दिन नई शुरुआत, अगला दिन नया त्याग, अगला दिन इंस्टेंट पेन को बर्दाश्त करना, अगला दिन इंस्टेंट प्लेजर को अवॉइड करना, क्योंकि आई वांट टू नाउ गो अहेड विद अ बिगर प्लेजर एंड आई डोंट वांट द बिगर पेन देन। कि अगर कैसे जब हमने पीडीपीएस किया था, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया था, तो हम स्पीचेस की तैयारी करते थे छोटी छोटी, राइट? कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, तो कैसा होता है स्पीच के अंदर कि अगर आज मैंने स्पीच की तैयारी कर ली, तो उस दिन जब मैं स्पीच अच्छी दूंगी या दूंगा तो कितनी रिकॉग्निशन मिलेगी, तो वो जो रिकॉग्निशन आपको इंस्पायर करती है कि आज थोड़ी मेहनत करते हैं इसके ऊपर। या फिर एक पनिशमेंट उसके साथ कि अगर आज मैंने तैयारी नहीं की और उस दिन अगर माइंड ब्लैंक हो गया और सबके सामने दिमाग नहीं चला, तो कितनी ह्यूमिलिएशन होगी। तो आपका दिमाग बड़ी पेन की तरफ है, तो आप छोटी सी पेन बर्दाश्त कर लेते हो कि नहीं यार, थोड़ा वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी स्पीच लिखनी पड़ेगी, थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, कर लेते हैं। माइंड तो कहेगा नहीं करते हैं, बैठो वीडियो गेम्स देखो, चलो इंस्टाग्राम पे, चलो सोशल मीडिया पे, चलो कुछ खा लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, दिमाग तो इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागेगा। लेकिन अगर दिमाग को ये पता लग जाए ना कि 3 दिन बाद अगर स्पीच है और वहां स्पीच में अगर मैंने नहीं दिया तो कितनी इंसल्ट होगी, और इंसल्ट कितनी बुरी होगी, तो दिमाग कहेगा छोड़ भाई, पहले इंसल्ट ज्यादा जरूरी है, काम करते हैं, अभी काम कर लेते हैं बैठ के। सिंपल है। या माइंड को नजर आ जाए कि उस दिन क्या प्लेजर मिलेगा, सबसे तालियां मिलने वाली हैं, सबसे रिकॉग्निशन मिलेगी, आई एम वेटिंग फॉर दिस डे, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, तो माइंड कहेगा छोड़ना इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टाग्राम बाद में देखेंगे, सोशल मीडिया वीडियो गेम्स बाद में खेलेंगे, पहले वो, क्योंकि 3 दिन बाद जो मिलेगा ना वो आत्मविश्वास को जागृत कर देगा, a bigger pleasure. So if your mind is using you for instant pleasure and avoiding instant pain, it's time you reverse the process and use your mind. माइंड का एक मैकेनिज्म है, एक फंडामेंटल पे चल रहा है, इंस्टेंट प्लेजर और इंस्टेंट पेन को अवॉइड करना। अब हम एक काम करते हैं, अब हम दिमाग को यूज करते हैं, या तो हम एक बड़ा टारगेट रख देते हैं और उसमें बड़ा प्लेजर रख देते हैं, उसके साथ अटैच कर लेते हैं, या उसके साथ बड़ी पेन अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बॉडी बनाने का शौक है तो बोल दो अपने 20 लोगों को या 10 लोगों को कि देख लेना 15 दिन के बाद क्या होने वाला है, या 3 महीने के बाद बॉडी बनेगी। या फिर अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो डिक्लेयर कर दो सोशल मीडिया पे कि आफ्टर 2 months यू विल सी मी इन रिप्ड बॉडी, पोस्ट योर पिक्चर टुडे एंड पोस्ट 2 months के बाद का पिक्चर टुडे। अपने आप समझ में आ जाएगा एक सेकंड, दिमाग कहेगा छोड़ो बेटा सब, 60 दिन के बाद फोटो पोस्ट करनी है, दिखाना है, प्रॉमिस किया है, वरना कितनी बेइज्जती होगी सोच भी नहीं सकते। करेक्ट? तो अपने आप काम करोगे। माइंड का आपने क्या, अब आपने क्या किया, अब आपने माइंड को अपना गुलाम बना लिया, इस ब्रेन को अपना गुलाम। सो ब्रेन तो बायोलॉजिकल हो गया, माइंड को अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि माइंड की आदत है सारी की जगह आपको उलझाने की, बस और कुछ नहीं उलझा रहा, आपका दिमाग आपको उलझा रहा है सब कहानियों के अंदर। सो कहीं बिगर प्लेजर या फिर कहीं बिगर पेन टाई अप कर दोगे तो अपने आप उसकी तरफ अग्रसर हो जाओगे। सो यूज योर माइंड सेंसिबली, दैट्स वन थिंग। विजन की हम बात कर चुके हैं कि विजन कितना जरूरी है। सो ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, नॉट अबाउट लेजीनेस, कि जब तक जिंदगी में कोई विजन नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, कोई मिशन नहीं होगा ना, बाकी सब चीजें जिंदगी की बहुत उलझा देंगी, कहीं किसी चीज में मन नहीं करेगा, जरा सा कोई टेम्प्ट करेगा तो खींचे चले जाओगे, जरा सा कोई पेन देगा तो आप भाग जाओगे वहां से,
ऐसे ही होता है ना, जब कोई विजन नहीं होता जिंदगी के अंदर, तो मैंने देखा है कि जब कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, लोग इमोशनल चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं. We keep finding solace in our relationships. They're important part of life. But सर्वोपरि नहीं है, 100% नहीं है. You are not born on this earth to create a relationship. You're born on this earth to fulfill something that you're meant and destined to do. Relationship is just one part of it. क्योंकि दुनिया में आए हो तो किसी ना किसी के साथ जुड़ोगे तो सही. क्योंकि अकेले बहुत सारी चीजें नहीं की जा सकती. कोई ना कोई आपकी कहीं ना कहीं मदद करता चला जाएगा. क्योंकि विजन नहीं है, पर्पस नहीं है, मिशन नहीं है, पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, इसलिए हम बाकी सब चीजों में उलझते चले जाते हैं. बाकी सब चीजों की इंपॉर्टेंस अगर 50% है तो 50% ही होनी चाहिए. होता क्या है, हम बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं और यहीं पे 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं. क्योंकि जरा सी अटेंशन, जरा सी केयर, जरा सी एक्नॉलेजमेंट, जरा सा अप्रिसिएशन, जरा सा प्यार कोई दे देता है, फिर इसमें फंसते चले जाते हैं और अपने सारे धर्म से साइड में होते चले जाते हैं. So important to understand, start maintaining a balance, start maintaining a balance, start maintaining a balance because this is your life. जिंदगी में समय वापस कभी नहीं आएगा. अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा कोई भी इंसान हो, समय को कोई वापस नहीं ला सकता. जो समय बीत जाता है वो कभी नहीं आएगा. बाद में पछताने का कोई फायदा होगा नहीं एट द एंड ऑफ द डे. सो start focusing on what you're meant and destined to do in this life instead of constantly seeking an attention. क्या होता है ना, देखो बचपन में ये सही होता है. जब हम छोटे होते हैं तो हमें लोगों की जरूरत होती है. हमारे आसपास के माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं. जब हम क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हमें उठाता है, कोई हमारा ध्यान रखता है, कोई फीड करता है. ठीक है, तब जरूरत होती है क्योंकि हम फिजिकली कमजोर होते हैं. दैट्स ओके. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जब हम 8 साल 10 साल स्कूल खुद जाते हैं, कॉलेज खुद जाते हैं, खाना खुद अपने हाथ से खाते हैं, सब चीजें हम खुद ही करते हैं. फिर उसके बाद किसी से झगड़ा होता है तो भी हम खुद ही हैंडल करते हैं. तब हम फिजिकली स्ट्रांग हो चुके हैं, मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन हम क्या इमोशनली अभी भी बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं कि हमें किसी की जरूरत है ऑल द टाइम. वी एक्चुअली डोंट नीड इट. किसी के साथ जुड़ जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं होनी चाहिए ना. जरूरत होगी तो हाथ फैला के खड़े रहोगे. मेरा किसी से जुड़ाव है, मेरा आपसे जुड़ाव हो गया, अच्छी बात है. 1 + 1 becomes 11, but it does not mean that I need you all the time for my survival. That's exactly the same mistake we do. बड़े हो गए हैं, सब चीजें खुद करते हैं, टेक्नोलॉजी खुद चला सकते हैं. आपके माँ बाप वो टेक्नोलॉजी नहीं चला पाएंगे जो आप चला पाते हैं, राइट? लेकिन जब इमोशंस की बात आती है, फट से हम वापस चले जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं. We need somebody to take care of us, and that's exactly what we do in our relationships outside as well. We keep looking for people who take care of us in our relationships as well. Girls look for boys, the boys looks for girls. कि कोई जो हमें थोड़ा सा हमारा ध्यान रख ले, थोड़ा हमारा केयर कर ले, थोड़ा हमारा अटेंशन दे, थोड़ा हमारा प्यार दे, क्योंकि हमारी जरूरत है. थोड़ा सा इस बात को भी जानना समझना जरूरी है. कब तक सीख करते रहेंगे हम ये? कोई आपको कंप्लीटली फुलफिल कर नहीं पाएगा इन सब चीजों में. आप ही खुद को फुलफिल कर पाएंगे. क्योंकि जो भी आएगा ना, जो आपको देगा, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है. और वो टर्म्स एंड कंडीशंस में हमेशा आप उलझते चले जाते हो. इट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स कहते हैं ना, वो जैसे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. वो छोटा सा लिखा होता है. ऐसे हर इंसान के साथ भी होता है. जो जिंदगी में आता है ना, जो थोड़ा सा अटेंशन केयर देता है, उसका भी एक वो हैशटैग होता है, हैशटैग एक स्टार मार्क, एस्ट्रिक मार्क होता है, व्हिच सेज टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड. वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है कि मैंने इतना सब कुछ दिया है तुम्हारे को, तुम क्या देने वाले हो ये भी तो बताओ. फिर आपको लगता है, मुझे तो लगता था इंसान सच्चा प्यार करता है विदाउट एक्सपेक्टेशंस. करेक्ट? फिर आपको लगता है अच्छा आपको भी फुलफिल करनी पड़ेंगी. फिर धीरे 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 साइकिल चलनी शुरू हो जाती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एट द डेप्थ. इसलिए विजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या कर सकते हैं लेजीनेस को खत्म करने के लिए? एक फिलॉसफी है, पहले भी कही है, बार बार इस बार कहूंगा. स्टार्ट टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट इन योर लाइफ.
मैंने ये नहीं कहा कि स्टार्ट टू एम्ब्रेस पेन, आई एम सेइंग स्टार्ट टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को थोड़ा एम्ब्रेस करते हैं, उससे भागते नहीं है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूरी है जिंदगी के अंदर, थोड़ी सी चुभन जरूरी है, थोड़ा सा अनईजीनेस जरूरी है, सो दैट यू कैन, क्या होता है ना, थोड़ी सी पेन जब बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है तो डर खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब मैं शूट पे जाता हूँ ना आजकल, मेरी एक फ्रेंड है, बड़ी प्यारी दोस्त है, पुरानी फ्रेंड है, वो रात रात भर सो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है और शूटिंग का टाइम है 7 AM to 7 PM, फिक्स टाइम। वो सो इसलिए नहीं पाती क्योंकि उसे पता है कि 5 बजे उठना, और उसको पता है वो उठ नहीं पाएगी किसी भी हाल में। तो क्या होता है ना, वो जो फियर है ना, इतना कांस्टेंट है कि 4-4 बजे तक जागती रहती है, कहीं अलार्म बजेगा, कहीं अलार्म बजेगा, नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, शूटिंग पे लेट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिकॉज देयर सो मच ऑफ फियर। बट अगर आपने ये आदत डाल ली है कि सुबह उठने की, हाइपोथेटिकल वन एग्जांपल, अगर आपने डाल ली है, आपने उस पेन को बर्दाश्त कर लिया है, नींद को त्याग कर दिया, तो फियर किस बात का? अब तो रोज ही खुल रही है नींद अचानक से विदाउट एन अलार्म। तो क्या हुआ? फियर खत्म हो गया। तो फियर जो है ना तभी खत्म होगा जब थोड़ी सी पेन बर्दाश्त करने की, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा ना, इंक्रीज योर स्टैमिना टू बियर पेन। थोड़ा सा पेन जिंदगी में आ जाता है, जरूरी है, क्योंकि तभी ग्रोथ होगी। सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे और इंस्टेंट प्लेजर में रहेंगे और इंस्टेंट पेन को अवॉइड करेंगे तो क्या ग्रोथ होगी बताओ? घर के बाहर निकलोगे, परेशानियां झेलोगे, मुश्किलें झेलोगे, कुछ ना कुछ झेलोगे, तो उसके बाद ही तो ग्रोथ होगी। घर के अंदर बैठे रहोगे तो क्या कुछ ग्रोथ हो सकती है? वही कंफर्ट जोन के अंदर हो। तो एम्ब्रेस अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन योर लाइफ, इट्स एब्सोल्युटली ओके। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट जायज है, क्योंकि जब ये आदत पड़ जाएगी ना, थोड़ी सी समझ में आ जाएगी बॉडी को भी कि हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूरी है, तो लेजीनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। ब्रेन विल नॉट रन फॉर एन इंस्टेंट प्लेजर ऑल द टाइम कि हाँ फट 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 कुछ इंस्टेंट प्लेजर मिल जाना चाहिए, नहीं। अब ब्रेन इज लुकिंग एट समथिंग बिगर, something, a bigger target, a bigger vision, a bigger goal, a bigger dream fulfillment, a bigger meaning to life, a bigger existential validation, something bigger. और जैसे हमने लेजीनेस में सर्वाइवल की बात की, वहीं पे एक बात और भी आ जाती है लेजीनेस के साथ, क्योंकि अब लेजीनेस को सर्वाइवल से कहते हैं ना कि जिन जिनका सर्वाइवल सेट है वो लेजी हो जाते हैं। वो लेजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि शायद हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी छूट गई। हमें खुद कुछ नहीं करना है, जो मिल रहा है ले लो। हम अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी छूट गई है, थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम भी लो हो गई है। ठीक है, कहीं से भी मिल जाए ले लेना चाहिए बस। क्यों? खुद करो, खुद कमाओ, खुद खरीदो, किसने मना किया है? रेज योर सेल्फ एस्टीम। अपने हाथ से बनाई गई चीज, अपने हाथ से बनाया गया खाना, या अपने कमाई से ली हुई चीज, क्या उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत नहीं होता? क्या आत्मविश्वास बढ़ता नहीं, या आत्मसम्मान बढ़ता नहीं, या अपनी नजरों में इज्जत बढ़ती नहीं? हम्म? लेकिन उसके लिए, अपनी नजरों में अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए दिन रात तपस्या तो करनी ही पड़ेगी ना। खाली बैठ के सब चीजें मिल जाएंगी तो क्या उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हाइटन अप हो जाएगा? क्या सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी? क्या आत्मसम्मान बढ़ेगा? लेकिन जब खुद की कमाई से कुछ करोगे, जब खुद मेहनत करके कुछ हासिल करोगे, तो उसमें क्या सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी नहीं? देखो बहुत सिंपल सी बात है, 2 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, मेहनत, शिद्दत और तपस्या के बिना तो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर नहीं पाओगे। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी इंसान हो, मेहनत, शिद्दत और तपस्या तो चाहिए होगी। चाहे आप टेक्नोलॉजी में काम करो, चाहे कन्वीनियंस में काम करो, चाहे एआई में काम करो, चाहे क्रिकेट में काम करो, चाहे फुटबॉल में काम करो, चाहे अकाउंट्स करो, चाहे मैथमेटिक्स करो, चाहे फाइनेंस करो, चाहे मार्केटिंग करो, मेहनत, शिद्दत, तपस्या तो लगेगी ही लगेगी। दूसरा, जब तक रातें जागोगे नहीं ना, तब तक ये नसीब नहीं जागेगा। ये अगर सब चीजें आसानी से मिलनी होती तो आज मिल चुकी होती, लेकिन आसानी से मिलती नहीं। इसके लिए मेहनत, शिद्दत, तपस्या, जागना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं। ये त्याग इसलिए करने पड़ते हैं ताकि आप अपने अंदर से कुछ जागृत करो बड़ा, जो आपके अंदर छुपा हुआ है ना, जो आपके अंदर, आपका एक जो, आपके अंदर एक हीरो छुपा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है, रियल हीरो। वो छुपा हुआ है यहाँ पे, बस वो एम्बेडेड है डीपली। उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारी
त्याग करने पड़ते हैं, ऐसे अपने आप को पकड़ना पड़ता है और हथौड़े से खुद को तोड़ना पड़ता है, तब जाके अंदर से कुछ निकलता है विच रेडिएट्स, जिसे लोग कहते हैं ना कि ऑरा है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। वो सब चीजें तभी हो पाएंगी जब खुद को तोड़ना पड़ेगा, खुद के अंदर से कुछ जागृत करना पड़ेगा। होता हर इंसान के अंदर है। जो इंसान आपको दिखते हैं ना, रियल हीरोज, मैं फिल्म हीरोज की बात नहीं कर रहा, मैं रियल हीरोज की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, जो रियल हीरोज आपको दिखते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो कहीं आसमान से टपक कर आते हैं। करेक्ट, वो इस दुनिया के ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर से कुछ जागृत किया है। जैसे मैं उस दिन एक बड़ा कमाल का शब्द पढ़ रहा था, स्थिर पुरुष था या स्थित पुरुष था या आत्मस्थिरता थी, कुछ तो था, और उस नाम के आगे सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था। रिसेंट एग्जांपल वाज MS धोनी। कि स्थिरता की जब हम बात करते हैं, आत्मस्थिरता की बात करते हैं, करेक्ट, वो आत्मस्थिरता जो दिखाता है हर लम्हे पे, करेक्ट, कि जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है, 2011 वर्ल्ड कप, इंडिया श्रीलंका मैच, वानखेड़े स्टेडियम, MS धोनी आखिरी छक्का मारते हैं, राइट, लास्ट 6 उनका था, 91 नॉट आउट वो थे, मैन ऑफ द मैच वो थे, कैप्टन वो थे। लेकिन जब ट्रॉफी मिली थी ना, तो सेंटर में वो नहीं थे, वो किसी कोने में खड़े हुए थे। ट्रॉफी बाकी सबके हाथ में थी। अगर किसी के पास वो चैंपियंस की फोटो हो या वीडियो हो तो जाके देख लीजिएगा। सो उनका एक अपना जिंदगी का आत्मस्थिरता है कि जब गेम के अंदर है तो 100% देना है या 1000% देना है, बट डिटैच फ्रॉम द आउटकम कि रिजल्ट क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं, ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं, बट आई जस्ट गेव माय 100% टू इट एंड आई वाज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड एंड एनग्रॉस्ड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। तो जिस दिन प्रोसेस में मजा आना शुरू हो जाएगा, उस दिन लेजीनेस कैसे होगी? हम क्या आउटकम के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जिम का भी आउटकम कि 3 महीने बाद किस तरह की बॉडी दिखेगी और उसका क्या वैलिडेशन होगा और उसका क्या एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन लोगों से मिलेगा, करेक्ट, कि जब नच की ट्रॉफी मिल जाएगी उसका आउटकम। डांस करने में मजा आता है तो बताओ, सिंगिंग करने में मजा आता है तो बताओ, क्रिकेट खेलने में मजा आता है तो बताओ, पढ़ने में मजा आता है तो बताओ, लिखने में मजा आता है तो बताओ। जिस चीज को कर रहे हो क्या उसमें मजा आता है तो सारे की सारी परेशानी खत्म, किसी प्रकार की कोई लेजीनेस हो ही नहीं सकती। सेशन करने में मजा आता है तो रोज करते हैं, जितनी मर्जी तकलीफ हो, जितना मर्जी परेशानी, जितने मर्जी शूट से डिले हो जाए, इंटरनेट शूट में मिल जाएगा, ना आएगा मैं तो शूट से भी कर लेंगे, करेक्ट। करने में मजा आना चाहिए। जिस चीज को करने में मजा आना शुरू हो जाएगा तो बोरियत अपने आप नहीं होगी। जब बोरियत अपने आप नहीं होगी तो लेजीनेस कहां से आएगी? सोचो, क्या वो लेजीनेस कभी आ सकती है? इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे हमने सबसे पहले बात की थी, and I keep saying it to everyone, I said keep the learning mode on, in the sense laziness कभी आ ही नहीं सकती अगर आपका लर्निंग मोड ऑन रहेगा। जैसे हमने बोर्डम की बात की थी, बोर्डम की वजह से या डिसइंटरेस्ट की वजह से लेजीनेस आती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी कर रहे हैं अपने लर्निंग मोड को ऑन रखें, ताकि जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में उसे सीखते चले जाएं, क्योंकि एज इट इज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। I was watching Priyanka Chopra's interview with Oprah Winfrey. You must watch it, everyone. It's a beautiful interview where she says, I am the student of life. I just keep learning. If I don't know anything, I will not sit. I will make sure that I learn, I adapt, I become flexible, and I become the student of life and I perform it to the best. मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी जिंदगी के अंदर, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या आप सीखने का प्रयास कर सकते हैं? क्या आप उसमें से कुछ अडेप्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को ओपन रख के, फ्लेक्सिबल रख के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो ये तो बेहद जरूरी है। लर्निंग मोड ऑन, ये हमेशा स्विच्ड ऑन रहना चाहिए 24 घंटे 365 डेज। बड़े बड़े जिन लेजेंड्स की मैं बात करता हूँ ना, चाहे वो टेस्ला के ओनर कौन है, इलॉन मस्क, दैट्स इलॉन मस्क। अगर आपको नहीं पता तो उनकी एक बार जाके ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, कि जब उन्हें, आई थिंक उन्होंने जो कंपनी फॉर्म की जिसमें रॉकेट साइंस के ऊपर वो कुछ रॉकेट्स बनाया, किसी के थ्रू पहले बनाया तो सब फेल हो गया, बहुत नुकसान हुआ, फिर उन्होंने सारी किताबें खुद पढ़ी हैं, खुद पढ़ी हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, रॉकेट साइंस, कि रॉकेट कैसे डेवलप किया जाता है टू सेंड दैट रॉकेट और
into the space and onto the Mars. He studied everything on his own. At that age where he doesn't need to do hundreds and thousands of billions of dollars. टेस्ला तो अभी लॉन्च ही नहीं हुई, आई ही नहीं है, उससे पहले 2 साल पहले इसकी एडवांस बुकिंग है गाड़ियों की, 2 साल पहले एडवांस बुकिंग है गाड़ियों की. कार्स आर सोल्ड, जबकि गाड़ी अभी आई नहीं है, किसी ने देखी तक नहीं है. Imagine what I'm talking about. So the learning mode is constantly on. You see, Mr. Bachchan, the learning mode is always on. कहीं पे भी जाते हैं. Other day, अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था शाहरुख खान के साथ उनका कॉफी विद करण का फर्स्ट सीजन का एपिसोड. Karan Johar is asking him, so Amit ji, how do you rate yourself as an actor on a rapid fire scale? From 1 to 10, how much do you rate yourself as an actor? His reply was 4. अब आप सोचा अमिताभ बच्चन, the superstar of the millennium, पता नहीं 50 साल से काम कर रहे हैं, हजारों फिल्में उन्होंने कर ली होंगी और ऐसी फिल्मों में कितने अवार्ड उनको मिल चुके होंगे और आई एम श्योर उनकी वर्सेटैलिटी के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता एज एन एक्टर. और उनसे बेहतरीन कलाकार कोई नहीं है, तीनों खान्स भी नहीं है, राइट? फिर भी दैट पर्सन सेज, हाउ मच डू आई रेट माई सेल्फ एज एन एक्टर? 4. बिकॉज देयर इज अ जेस्ट टू लर्न. मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के ये बात कही, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि probably he thinks that there's still so much to learn, there's so much to grow, there's so much to understand, so much to move forward with. So keep the learning mode on. ये जब दिमाग खुला रहेगा ना कहीं से कुछ भी सीखने के लिए, इज़िनेस अपने आप जिंदगी में पीछे चली जाएगी. The only thing that everyone should keep striving for is how to keep evolving with the time. How to keep growing with the time, how to keep expanding yourself, how to keep moving forward one step at a time. जैसे हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेबी स्टेप्स ही चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी करना है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो हम क्या सोचते हैं, बस 15 दिन दे दो, 15 दिन में रोज कभी जिम करेंगे, कभी योगा करेंगे, कुछ नहीं होगा. 15 दिन 2 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं है. एवरी डे फॉर फ्यू वीक्स, फॉर फ्यू मंथ्स, सिर्फ 10 मिनट मेहनत करना है रोज. Just a baby step, and it will convert it into a lifestyle. Once it gets converted into a lifestyle, it becomes longer for you. Everything is in longer perspective of life. हम छोटे पर्सपेक्टिव में जिंदगी को देख रहे हैं, सब चीजें बड़े पर्सपेक्टिव में होती हैं जिंदगी में. हम हेल्थ को इतनी कम महत्वता देते हैं. हम कहते तो हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम रोज एक्सरसाइज करते हैं? सोचो, क्या हम रोज वो खाना खाते हैं जो हमें लगता है कि हेल्दी है, जो हमारे लिए सही है? हम कुछ दिनों की डाइट फॉलो करते हैं, बस पता लगता है कि 1 महीने बाद दोस्त की शादी है, लहंगा चोली पहनना है, स्टमक दिखेगा, तो एक काम करते हैं ना, आज से डाइटिंग शुरू. या किसी को शर्ट दिखानी है या फोटोशूट है, चलो आज से डाइटिंग शुरू. अगले 1 महीने तक डाइटिंग, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, सब लेके फिर जैसी फोटोशूट हो जाता है उसके बाद छोड़ देते हैं. उसके बाद ले आओ भाई, चिकन भी ले आओ, बटर चिकन भी ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट प्रायोरिटाइज इट. हमने हेल्थ को प्रायोरिटी थोड़ा ना दिया है, हमने फिर आउटकम को ही प्रायोरिटी दिया. हमने प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं दी कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है. हमने प्रायोरिटी क्या दी कि किस तरह से हम दिखेंगे उस दिन. जब दिखेंगे तो रिकॉग्निशन मिलेगा, फिर वैलिडेशन मिलेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर अप्रिसिएशन मिलेगा, फिर अप्रूवल मिलेगा. उससे हम क्या फील करेंगे? लेकिन अगर हम रोज अपनी हेल्थ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चले जाते हैं, करेक्ट, तो जाहिर सी बात है बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है, लाइफस्टाइल अपने आप बनता है, स्किन अपने आप ग्लो करती है, आवाज अपने आप रेडिएट करती है और अपने आप बनता है. बिकॉज एवरी डे यू आर टेकिंग small baby steps. Cuts down all the laziness in life. Okay, so train your mind to embrace instant pain and avoid instant pleasure. Brain एक fundamental पे काम करता है, हम उसको reverse use करेंगे. Brain says instant pleasure and avoid instant pain. I'm saying let's reverse it. Embrace instant pain and avoid instant pleasure so that you can look forward to something bigger in life and achieve bigger dreams. That is what is laziness. Anyone wants to ask anything? We can. Hanji Tarali ji, boliye. Regarding laziness, I just want to say that
It's all about willingness. Sorry. It's all about willingness. It's all about willingness. Yes, willingness तो चाहिए कुछ जिंदगी में चाहत तो होनी चाहिए कुछ करने की। अगर कोई चाहत नहीं होगी जिंदगी के अंदर तो जाहिर सी बात है हर चीज हर जगह पे डिसइंटरेस्ट होगा। तो और वो विलिंगनेस तो मुझे लगता है जिंदगी की अपनी है। ऐसा नहीं कि आपको विलिंगनेस की जरूरत होती है। दिस बॉडी इज विलिंग टू सर्वाइव एट एवरी मोमेंट। द पॉइंट इज when the body and mind का synchronization में गड़बड़ है, when the mind gets stuck and the body wants to survive, you understand? तो willingness खत्म हो जाती है ना। Yeah. And बॉडी तो सर्वाइव करेगी लेकिन ब्रेन है कि कहीं अटक गया या माइंड कहीं अटक गया है। तो माइंड इज नॉट, माइंड जहाँ अटका पड़ा वहीं अटका पड़ा, बट द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग बिकॉज एवरी डे द बॉडी इज ग्रोइंग, सो द कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग बॉडी और माइंड के बीच में। और जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो अपने आप सारे के सारे सिस्टम थोड़े खराब हो जाते हैं। हाँ जी बोलिए तराली जी। And regarding instant pleasure, yes, I have given up 1 year back only. I always get up at 4:30. Wow, that's Before wonderful. joining this before joining this 5 a.m. transformation also, and I'm getting That's very rewarded. nice. I'm getting rewarded also. I'm losing weight. I'm getting stamina. And this when I've started this 5 a.m. transformation course for last 60 days, I have lost, I think, 5 kilos of my weight. Wonderful. Another Very, 5 very kilos. nice. Very And nice. it's rewarding also. People say that, okay, like what you are doing, you're looking so good, great. So it's Wonderful. self-rewarding. It's Because self-rewarding. first of all, 1 year back, it was very difficult for me to get up. And after that, it's a biological clock is set up in me. And I just get up myself only. Automatically, I'll get up and I go out for morning walk. And this is my 5 a.m. transformation also. Wonderful. That's Wonderful. all. Thank you, Taralaji. That's really nice. Wonderful. Very nice. Anyone wants to talk, wants to ask anything? हाँ जी मानसी जी बोलिए। Clear है laziness के बारे में? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी मानसी जी बोलिए। सर ऐसा भी तो होता है कि look, I am very active otherwise. I work for 16 hours, 18 hours a day because I recently started my own business too. And that too because of your sessions. Firstly, आपने बहुत motivate किया था. So I kind of figured that out in myself and I started that. So I can work 16 hours, even 18 hours if required. But जब जिम जाने की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाना है, that's a requirement. I should do it because it's my health which asks for. But फिर लगता है कि वो जो 2 घंटे या 1 घंटे में जाऊंगी उसमें मैं ये 4 काम भी तो निपटा सकती हूँ। वही तो बात है। मैं बताता हूँ कब आप जिम जाओगे। तो डॉक्टर कहेगा ना कि अगर आप जिम नहीं गए तो बॉडी के अंदर बहुत डिजीजेस आ जाएंगी और सिर्फ डिजीजेस की वजह से कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और शायद सर्जरी करनी पड़ जाएगी या ऐसा हो जाएगा। जब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ बढ़ जाएगा तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं ये जो काम की जो मैं देखो हो क्या रहा है, बात वहीं पर आ जाती है। प्रायोरिटी क्या है? हाँ सर, हम वही कहते तो हैं हाँ हम कहते तो हैं कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होती नहीं है। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ सर्वाइवल में ही और पैसे में ही अटकी पड़ी होती है, हमारे काम में। करेक्ट? तो या तो उसको प्रायोरिटी बना लो, अगर नहीं बना सकते तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात हो जाएगी ना कि जब डॉक्टर कहेगा कि चीजें खराब हो गई हैं, जब चीजें बॉडी में तंग कर रही हैं, उसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आप जाओगे तो आप बिगर पनिशमेंट का वेट करोगे कि जब वो बिगर पनिशमेंट आएगी देन आई विल गो, बिकॉज ब्रेन इज लुकिंग फॉर मे बी शायद आपको काम में बहुत मजा आता है अपने। करेक्ट? तो वहां पे बहुत प्लेजर मिलता है और जिम जाने में कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखता नहीं है इतनी जल्दी, कोई प्लेजर मिलता नहीं है। करेक्ट? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली ऐसा हो कि आप जिम गए पहले दिन दूसरे दिन और वहीं पे आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन दिख गया या वहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया कि वाह यू लुकिंग वेरी गुड, यू डूइंग वेरी गुड फॉर योरसेल्फ, तो क्या है आप दूसरे दिन जरूर जाओगे क्योंकि ब्रेन को फिर वहां से इंस्टेंट प्लेजर से यहाँ पे इंस्टेंट प्लेजर मिलना शुरू हो जाएगा। सर आई एम नॉट एबल टू डू ओनली दिस पार्ट ओनली। मतलब ये मुझे जब it's been 3 months I'm planning to do it. I have enrolled as well, but every time I try and go I think कि नहीं मैं उस 1 घंटे में ये काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि मानसी जी काम से आपको वैलिडेशन मिलता है, जिम में कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। काम में अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल मिलता है, सब तारीफ करते हैं काम में कि लिसन यू आर डिवोटिंग सो मच ऑफ टाइम टू योरसेल्फ, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे डिवोट कर रहे हैं तो पीपल मस्ट बी अप्रिशिएटिंग। बट जिम में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है क्योंकि जिम में कोई एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, अप्रूवल नहीं मिल रहा है कहीं से। करेक्ट?
तो कहीं ना कहीं हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां से हमें जो मिल रहा है। जिस दिन जिम में आप जाओगे 2 दिन 3 दिन और वहां पे जो आपके दोस्त मिलते हैं, अगर वहां से कोई आपको अप्रूवल, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा, फिर ऐसे इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भी भागेगा। तो या तो वहां से मिलना शुरू हो जाए या फिर उसके साथ आप एक बिगर पनिशमेंट अटैच कर लें, क्योंकि ये तो आपको ही अटैच करना पड़ेगा ना। हाँ जी। कि बिगर पनिशमेंट क्या है, या तो फिर वो डॉक्टर वाली पनिशमेंट होगी, डॉक्टर का है कि आप तबीयत खराब हो गई अब तो जाना ही पड़ेगा, तो सर्वाइवल की बात आ जाती है, फिर तो जाना पड़ेगा। या फिर जैसे मैंने कहा कि अपने दोस्तों से कहो 3 महीने के बाद देख लेना है, 15 दिन के बाद देख लेना, लुक हाउ मच वेट आई विल लूज। क्योंकि ये देखो सिंपल है ना, एक चीज में एक पैटर्न बना हुआ है, हम उस पैटर्न में अटके पड़े हैं, तो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कुछ तो उल्टा करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर उसी पैटर्न में गोल गोल घूमेंगे तो फिर तो कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं किसी भी प्रकार का। तो या तो यहाँ पे कोई बिगर रिवॉर्ड, या हाइपोथेटिकली आप एक रिवॉर्ड अटैच कर लो कि अगर 1 महीना आप कंसिस्टेंटली यहाँ जाते हो, देन यू रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर समथिंग, और यू टेल योर पार्टनर और एनीवन और योर फैमिली मेंबर्स टू रिवॉर्ड, बिकॉज देन यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए वहां से, या तो कोई एक्नॉलेजमेंट इंस्टेंट प्लेजर की, या फिर कोई बड़ा रिवॉर्ड, या फिर उसके साथ कुछ बड़ी पनिशमेंट अटैच हो, तभी होगा। वरना जो कर रहे हो वही करते चले जाओगे, क्योंकि वहां से तो सब मिल ही रहा है ना। वहां से तो तारीफ भी मिल रही है, वहां से मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, पैसे भी आ रहे हैं, रिकग्निशन भी मिल रहा है, सब चीजें वहां से मिल रही है, तो दिमाग वहीं पे जा रहा है बार बार, फिर यहाँ पे तो जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर 15 दिन जाने के बाद यही लोग कहेंगे, वाह मानसी यू आर लुकिंग ब्रिलियंट, व्हाट वर यू डूइंग इन द पास्ट 15 days, ये जो आपके लोग हैं, hypothetically I'm just giving an assumption, an example, कि 15 दिन आप जिम गए and some transformation begin to happen and the people that you're working with start to appreciate you after 15 days, that listen Mansi you're looking brilliant, what were you doing in the past 15 days। तो फिर अगले 15 दिन क्या, अगले 2 महीने तक आप जिम में रहोगे, क्योंकि यहाँ से अप्रिसिएशन भी मिलना शुरू हो गया। Because the brain is already on an auto mode in finding pleasure somewhere, वो वहीं पे stuck है। हम क्या करेंगे, वहां से उसको अगर निकालना है, किसी और चीज को भी करना है, तो या तो बिगर पनिशमेंट या बिगर रिवॉर्ड, या यहीं पे जाके अगर कोई आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए इमीडिएटली, जैसे कोई इमीडिएट तारीफ कर दे, या इमीडिएटली किसी तरह रिकग्नाइज कर दे, या इमीडिएटली वैलिडेट कर दे, या इमीडिएटली आपके आसपास के कहीं से कुछ मिल जाए, तो शायद फिर वहां पे भी जाना शुरू करोगे। That's how it works. Yes sir, thank you। तो कुछ ना कुछ एक बांध लो। हाँ सर, I know। वो तो बांधना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। वरना फिर वहीं पे रहेंगे जहाँ पे रहेंगे। हाँ जी, so true। Wonderful, thank you। Thank you sir। हाँ जी, thank you, तेजस्विनी, yes। आवाज कम आ रही है बेटा। कम आ रही है अभी भी। I don't know, you want to leave and come back or unmute and mute? I'll leave and come back. Yeah, do that। Wonderful। Anyone else wants to ask anything? हाँ जी, आद्यस्मिता, that's your name right? आद्यस्मिता? Unmute yourself। That's a beautiful name। क्या मतलब है इस नाम का? Adya means first and Smita means girl. So as I'm the first girl of my family. So how nice, that's a beautiful name, Adyasmita, first girl of the family, very beautiful। हाँ जी आद्या, बोलिए। like I have a problem, like we have to submit our assignments and we have a submission date and we have a late submission date। Okay। and there is no punishment for late submission। तो फिर लेट सबमिशन में जाएगा, फर्स्ट में तो जाएगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ वही कि हाउ टू गेट द मोटिवेशन कि नहीं सबमिशन डेट पे ही करना है, लेट सबमिशन पे नहीं। वो तब जाएगा जब लेट सबमिशन पे कोई पनिशमेंट हो। हाँ वही, पनिशमेंट कुछ नहीं है लेट हाँ, तो इसलिए जाएगा नहीं, तो क्योंकि ब्रेन ना बड़ा सिंपल है, प्लेजर और पेन की तरफ है। ब्रेन को जब पता है, जब हमें पता है कि एक डेट है 15 तारीख, 15 अगस्त को हमें एक सबमिट करना है, उसके बाद एक लेट सबमिशन डेट है 31 अगस्त, राइट। अब मुझे पता है कि 31 अगस्त पे कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 31 तक चलने दो, 30th को देखेंगे आगे क्या आगे, राइट। हाँ, अगर 31 अगस्त को पनिशमेंट है, करो 31 को सबमिट। करेक्ट। अगर 31 को कोई पनिशमेंट है, करेक्ट, अगर कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट है, सपोज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन
you will be said a few words, या आपको कुछ बोला जाएगा या आपको बुरा भला कहा जाएगा, तो आप नहीं जाओगे, आप कहोगे 15 को ही 14 रात को ही बैठ के खत्म करना है। करेक्ट? या फिर ये तो एक हो गया, अब ये तो हो गया पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड की बात करते हैं। अगर 15 अगस्त को सबमिट करने पर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है जो 31 अगस्त को सबमिट करने पर नहीं मिलता है, तो आप 14 तारीख रात को बैठ जाओगे क्योंकि आपको वो रिवॉर्ड चाहिए। हाँ। कि हाइपोथेटिकली अगर आपका सबमिशन में सपोज आपको 90% मिलते हैं, राइट, लेकिन अगर आप 15 अगस्त को करोगे तो आपको 95% मिलेंगे, तो आप 14 अगस्त रात को बैठ के करोगे। इतना ही सिंपल है। जैसे जब टाटा पावर का बिल आता है ना हमारे यहाँ, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो कैसा होता है, अगर आपने इस डेट से पहले किया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपए, डिस्काउंट मिलेगा, तो एक रिवॉर्ड है, तो लोग उससे पहले कर देते हैं। अगर आपने इस डेट के बाद किया तो पनिशमेंट मिलेगी, 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर तो आप 100 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, आपके 100 रुपए लिए कुछ नहीं है, तो आप कहते हो बाद में देंगे। अगर आपके लिए 100 रुपए मायने रखते हैं हर महीने के बजट में, तो आप कहोगे यार ये 100 रुपए बचा लो, क्योंकि देने तो बाद में भी हैं और देने पहले भी हैं। हाँ। तो the brain is constantly flickering between the pleasure and the pain, that is या तो instant pleasure या avoiding instant pain। तो इतना ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इच्छा है कि मुझे 15 को, ये तो आपके सवाल का जवाब हुआ। हाँ। अगर आपको अपनी आदत को बदलना है तो बेटा क्या होता है ना, हमें अपनी आदतों को खुद ही बदलना पड़ेगा। हमारा ब्रेन जो है ना, जो ऑटो मोड पे चला गया, सबका ब्रेन एक ऑटो मोड पे चला गया है। अब समझो जरा बात को, जब ब्रेन ऑटो मोड पे चला जाता है, माइंड ऑटो मोड पे चला जाता है, तो हमारे आप से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, मतलब ये गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेट्स ब्रिंग द कार बैक इनटू आवर हैंड्स। हाउ? अब हम क्या करेंगे, हम 15 अगस्त को अगर हमारा सबमिशन है, अगर हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि अगर हमने 15 को किया तो we will reward ourselves because this is my life. I will clear my brain. Nobody needs to give reward to me. I will treat myself, or I will buy something for myself because I have submitted and I made a commitment to myself and I fulfilled that commitment. When you make a commitment to yourself and you fulfill that commitment, what happens is your self-esteem rises, your self-respect rises, your self-love rises, your self-confidence enhances because मैंने अपने आप से commitment किया और मैंने वो पूरा किया। Yeah. Correct? So we can do that. Yes. That's it. Okay. और अच्छा, ये तो हो गया रिवॉर्ड में। दूसरा, अगर मैंने 15 तारीख को नहीं किया, तो अगर ये नहीं करना, रिवॉर्ड के पैसे नहीं है, तो बता दो, अगर मैंने 15 तारीख को नहीं किया, ठीक है, तो 15 रात को 12 बजे के बाद मेरी पनिशमेंट शुरू होगी। वो पनिशमेंट होगी कि अगले 3 दिन तक ना मैं कोई वीडियो गेम खेल सकती हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे जा सकती हूँ, ना मैं कुछ पोस्ट कर सकती हूँ, ना मैं कुछ देख सकती हूँ। आई हैव अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू माई सेल्फ बिकॉज आई डिड नॉट फुलफिल माई कमिटमेंट। अब बताओ, अब दिमाग क्या करेगा? वही 15 से पहले ही करके दे देगा। इतना ही सिंपल है। So what happens is now what we are doing is we are training our mind. We are bringing it back. We are bringing the remote control of our life in our hands. आप सभी के लिए एक बड़ी कमाल की बात है, अगर आप जिंदगी में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को चरम सीमा पे रखना चाहते हो हमेशा, मतलब एट द पीक, जो भी अपने आप से कमिटमेंट करो उसे पूरा जरूर करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उसके लिए आसमान क्यों नहीं करना पड़ जाए। क्योंकि जिस दिन अपने आप से की गई कमिटमेंट को ऐसे ही छोड़ देते हो ना, उस दिन दुनिया से की भी कमिटमेंट को भी ऐसे ही छोड़ दोगे। उस दिन क्या होगा, अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब अपने आप से किया गया वादा नहीं पूरा कर सकते, तो दूसरे से किया गया वादा क्या पूरा करोगे? अगर मैंने अपने आप से कोई कमिटमेंट की है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करो, क्योंकि वहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। क्योंकि नाउ आई एम वैल्यूइंग माई सेल्फ, आई एम वैल्यूइंग माई वर्ड्स, राइट? सो इम्पोर्टेंट है। ओके, यस। एनीवन एल्स? हाँ जी, तेजस्विनी जी, सॉरी आपसे बात नहीं हो पाई। यस, बोलिए। यस सर, तो आई वाज सेइंग कि आई कुड रिलेट टू मानसी कि ऐसे होता है कि अच्छा, वो तो उनको खुद को लगता है कि ये जितना टाइम मैं जिम में जाऊंगी उतना टाइम मैं काम कर लूँ। अब ये हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई है, जैसे मेरे भैया जो मुझसे बड़े, उन्होंने बहुत मेहनत से उनका मुकाम हासिल किया है, तो उनका रहता है कि हमको जो काम करना है बस हमको उस पे ही फोकस करना है, बाकी सब चीजें छोड़ देनी है।
मतलब इज लाइक कि कोई जरूरत नहीं है उतना टाइम ना, तो अपने काम में इन्वेस्ट कर। लाइक जैसे आई लव स्केचिंग, ठीक है ना, तो आर्किटेक्चरल स्केचेस बना, बाकी स्केचेस में मत जा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे मॉर्निंग वॉक जाना है, अरे कुछ नहीं, जो फिट होता है ना उनको भी कोविड हुआ और वो निकल लिए। इट्स लाइक कि ऐसे कुछ होता है, बहुत सारे एथलीट्स भी तो ऐसे होता है कि क्या करे तो क्या करे, इंसान खुद का कुछ कर नहीं सकते क्या, मतलब ये थोड़ा कंडीशनिंग, घर का कंडीशनिंग भी होता है जो हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता है। और एक चीज की सेल्फ मोटिवेशन, फिर ओवर द टाइम सेल्फ मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। लाइक पहले बिफोर 5 AM मैं ऐसे सोचती थी ठीक है ना, चलो 10 बजे का ऑफिस है, वो भी मेरा खुद का ऑफिस है, आई एम द बॉस, मुझे क्या जरूरत है ना टाइम पे जाने की। मैं उठूं, अच्छा आई कुडंट इवन रीच एट 10, मतलब ठीक है ना, सुबह उठ के भी करूंगी क्या, आराम से उठ के 10 बजे का ऑफिस है, 9 बजे उठ जाएंगे, जब मुझे पता है 9 बजे उठ के मैं रेडी नहीं हो पाऊंगी 10 बजे तक। फिर जो ईगो होता है, जैसे आपने कहा कि माइंड एक्सक्यूजेस देना शुरू करता है, ईगो एक्सक्यूजेस, हाँ हाँ ठीक है, कौन सा बॉस टाइम पे पहुंचता है, भाई हम आराम से पहुंच सकते, स्टाफ तो पहुंच ही रहा है ना। करेक्ट है। हम आराम से जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हो रही थी, थैंक गॉड 5 AM आया, और लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी कि मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ खुद ही। वो एक्सक्यूजेस मैंने खुद को देने बंद कर दिए अभी। बट फिर ये जो बाकी की कंडीशनिंग है जो हमें पीछे खींचती है, और एक हाँ, ये ओवर द टाइम मैंने और एक प्रॉब्लम फेस किया है कि जैसे मेरे कॉलेज सबमिशन, जैसे ये अभी जो लड़की ने बताया, आज जस्ट मेरा, सॉरी, तो जैसे सबमिशन, लेट सबमिशन होता है तो हम उसी के पीछे जाते हैं। अब ऐसे हुआ है कि मुझे पता है कि डेडलाइन 15 अगस्त की है, तो मैं 14 को ही बैठ के करूंगी, ठीक है, आई नो कि आई हैव 15 डेज। बट फिर ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है ना मैं एक दिन में कर लूंगी, तो मैं क्यों 14 डेज करते बैठू उसको, या क्यों पहले से करके रखूं, और उस दिन बैठूंगी तो ज्यादा इफेक्टिवली होगा, विदाउट करेक्शन होगा, ज्यादा क्रिएटिव होगा। तो ये सेटअप से निकलना है मुझे खुद को लगता है, बट मैं निकल नहीं पा रही। ये करेक्ट बात है। ये आपके नहीं, बहुत सारे लोगों की आदत है कि लास्ट मिनट पे करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि एग्जाम कल है, पढ़ाई आज ही करेंगे, उसमें ज्यादा फोकस मिलता है या ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। पता है क्यों अटेंटिव हो जाते हो? क्योंकि उस समय तलवार सर पे लटक रही होती है, यू आर इन द डेंजर सिचुएशन। When you are in a state of danger situation, your mind forgets everything and comes you back to the present moment. हमने पहले भी एक बार प्रेजेंट मोमेंट की बात की थी ना, कि बहुत सारे लोगों को स्पीड बहुत पसंद होती है। आई थिंक ओवर थिंकिंग के सेशन में बात की होगी कि बहुत सारे लोगों को स्पीड क्यों पसंद होती है। क्योंकि जब हम स्पीड में चल रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो हमें क्या पता होता है कि अगर इस मोमेंट पे पूरा का पूरा 100% ध्यान यहाँ पे नहीं रहा तो शायद बाइक पलट जाएगी, शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। इट्स एन एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। सो व्हाट डज इट, द बॉडी एंड द माइंड ब्रिंग्स यू बैक टू द सर्वाइवल मोड, कि किसी तरह बॉडी को खुद को बचाना है। तो बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो सारी कहानियां छोड़ देता है जिन कहानियों में आप नॉर्मली उलझे रहते हो ओवर थिंकिंग की, उन कहानियों को छोड़ के ब्रिंग्स यू बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि आप गाड़ी यहाँ पे खड़े हो, सामने से कोई कार आ रही है 120 की स्पीड पे, और आपको पता नहीं होता क्या करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग शट्स डाउन एंड द बॉडी विल गो इनटू द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ फाइट और फ्लीट। दैट्स एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। हम ये जो कर रहे हैं ना, एक्चुअली इससे खुद को खोखला कर रहे हैं। आखिरी मिनट पे जब हम करना शुरू करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि स्ट्रेस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि एंग्शियसनेस ना आए। हम उसको जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी का क्या कर रहे हैं आप, सारे मैकेनिज्म छोड़ के बॉडी विल अगेन कम बैक टू द सर्वाइवल मोड। अब यहाँ पे सर्वाइवल मोड में आने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, अगर आप बार बार बॉडी, सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है कि जब मृत्यु तक बात आ जाए हाइपोथेटिकली, तब सर्वाइवल होना चाहिए ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार बॉडी को उस मोड पे डाल रहे हैं जहां पे हमें नहीं डालना चाहिए, विच इज सर्वाइवल मोड। इन द सेंस देखो, जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तब सर्वाइवल मोड आए तो ठीक है बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो रोज रोज नहीं आती ना, वो 15 दिन में एक बार भी नहीं आती, वो महीने में, वो कभी जिंदगी में आती, कभी नहीं आती। शायद पूरे हर इंसान की जिंदगी में 3, 4, 5 या 10 बार ऐसा कुछ होगा जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी। लेकिन जब हम ये आदत बना लेते हैं ना कि हर एग्जाम से पहले हम एक रात पहले ही पढ़ेंगे, तो हम बॉडी को उसी मैकेनिज्म में डाल रहे हैं, उसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। तो एग्जाम अगर महीने में 3 है
तो महीने में 3 बार आपने अपने आप को उस स्ट्रेस से गुजारा, उस एंग्शियसनेस से गुजारा, तो बॉडी धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखली होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कितनी बार उस मैकेनिज्म पे जाएगी? ऊपर वाले ने आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी, ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि साल में 50 बारी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ही आ रही है। तो ऐसे 50 साल के अंदर तो 5000 बारी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी। आपकी बॉडी, आपका माइंड धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर देगी, अंदर ही अंदर खोखली होनी शुरू हो जाएगी, अंदर ही अंदर कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट कि एवरी टाइम यू पुट इट इनटू द सर्वाइवल मोड। जब आदिवासी थे, जब शेर चीते घूमते थे, तब बात अलग थी, करेक्ट? तब भी हर किसी के लिए नहीं होता था लाइफ थ्रेटनिंग। जो लोग शिकार पे जाते थे उनके लिए ही होता था, बहुत कम, बाकी सब लोग अपना घरों के अंदर ही रहते थे। तो अगर आप बार बार कॉन्स्टेंटली, इट्स लाइक हम गाड़ी चला रहे हैं और बार बार उसको पीछे रिवर्स गियर में डाल रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं रिवर्स गियर में डालते हैं, गाड़ी चलाते हैं रिवर्स गियर में डालते हैं, तो गाड़ी में ऊपर नीचे करोगे तो अंदर से वो धीरे धीरे खोखली होनी शुरू हो जाएगी। सो स्टॉप डूइंग थिंग्स एट द लास्ट मिनट, चाहे वो आपका एग्जाम सबमिशन हो, चाहे वो आपकी जॉब का कुछ सबमिशन हो, क्योंकि लास्ट मिनट में होगा क्या, ऊपर तो स्वॉर्ड हैंगिंग होगी कि नौकरी ना चले जाए, नुकसान ना हो जाए, बिजनेस खराब ना हो जाए। So at the end of the day, you will start coming back to the same thing. Survival mechanism, survival, and the body will start to lose internally. हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता हो गया, हमें मजा आता है प्रेशर में। बहुत सारे लोग कहते हैं मजा आता है प्रेशर में। अच्छा, मजा आता है प्रेशर में, तो एक दिन मत करो ना फिर काम, देखते हैं जरा क्या होता है, कितना डर आता है अंदर ही अंदर। अंदर तो डर ही होता है ना कि पता नहीं कल को क्या होगा, बुरा ना महसूस हो, कोई ह्यूमिलिएट ना करे, काम ना छूट जाए, रेजिग्नेशन ना हो, नौकरी ना चली जाए, नुकसान ना हो जाए, वो सब चीजें होंगी ही होंगी। सो ट्राई टू अवॉइड द लास्ट मिनट प्रेशर्स। इफ इट कम्स देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट डोंट इनवाइट इट एंड डोंट क्रिएट इट। लाइफ है, कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी, कोई प्रेशराइजिंग सिचुएशन अपने आप आती है तो ठीक है, आपने बुलाया नहीं, लेकिन अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो गलत है ना। क्रिएट कर रहे हो तो आप खुद को उस आग में बार बार झोंक रहे हो कि आपको पता है आपके पास 25 दिन है, उसको रोज थोड़ा थोड़ा कर लो, नहीं तो 20 तारीख को कर लो, 15 तारीख को कर लो, 24 रात को ही करना है, तो गड़बड़ होने शुरू हो जाएगी। और वो एक बारी में नहीं होगा, कंसिस्टेंटली जब आप बार बार ऐसे करोगे ना, then the body starts to become like that. I always Clear? look for the deadline कब है, ठीक है। मतलब कोई घर का ऑलमोस्ट सब घर का ही वर्क होता है, तो आई कीप सेइंग टू माय भैया एक काम करो ना, आप मुझे डेडलाइन दे दो। टेल्स मी कि देख इतने टाइम में हमको ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब होना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं होगा, आपने मुझे डेडलाइन दो। मुझे इससे निकलना है, बहुत हो गया। क्योंकि बॉडी और माइंड कंडीशन हो गया डेडलाइन से। नाउ I would suggest before the deadline, begin to complete and reward yourself. Find 1 week before the deadline, complete it before the deadline, and reward yourself. That is the only way you can come out of this chakravyuh. Otherwise, क्या होगा, ये chakravyuh completely आपको अटकाता रहेगा बार बार. Okay, then you'll get stuck into that. ईगो तो हमारा बहुत ही अच्छा होता है, जो हमें ऐसी कंडीशन करते रहता है। वो तो हाँ, मतलब वो तो है, ईगो तो फॉल्स सेंस ऑफ इमेज, तो आपको एक्सक्यूजेस भी देगी, हर चीजें करेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट इट कीप्स डूइंग, बिकॉज इसका आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ है। और जितने ज्यादा आपको एक्सक्यूजेस देगी, आपको उतना ज्यादा मजा आता है। नहीं, अपने आप को तो हम समझा ही लेते हैं किसी न किसी तरह। इतना ज्यादा कि 5 AM के पहले ऐसे था, डेट जा रही तो क्या हो गया ना, ऑफिस मेरा है, चलो ठीक है, मुझे तो ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं, मैं तो घर से कर सकती हूँ, स्टाफ तो काम कर ही रहा है ना मेरे लिए। इतना ज्यादा मैं सोची कितना गलत है ये। आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं पता? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 जो भी उनका टाइम है, उठते हैं, 7:30 बजे नहा धो के 7:45 बजे कोट टाई सूट पहन के बैठ जाते हैं एक कॉर्नर में, जो उनका कॉर्नर है जिसपे काम करना है, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, that is their corner. They will begin their work at sharp 8 AM. They will take lunch there only, half an hour break, again come back to work and finish their work at 7 PM. There are people like that also working from home at exactly the same way they were working from, because शायद उन्हें काम से बेहद मोहब्बत और तरीका पता है। Correct? Wonderful. Hoshang, right? आपका नाम? Thank you, Tejaswini. Yeah. How do you Hoshang, right? Do you want to ask anything? Hoshang. Hoshang, हाँ. कोई सवाल है आपके? कहाँ से हो आप? Actually, Mumbai. मुंबई से। हाँ, आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है? All clear? Yeah, all clear. Okay, wonderful, wonderful. Thank you.
साहिल जी, सर वो एक छोटा सा सवाल था, वो छोटे आपने से कहा सवाल तो सवाल ही, छोटा क्या हो बड़ा क्या उसमें। छोटे सवाल का ऐसा तो है नहीं कि मैं एक शब्द में आंसर दे दूंगा और आंसर हो जाएगा। नहीं सर, वो एक्चुअली वो आपने बोला था ना कि जब तक रातें जागोगे नहीं तब तक नसीब नहीं हाँ जागेगा। यस, तो सर रातें जागना इज इम्पोर्टेंट, मतलब व्हाट अरे आई एक एक्चुअली फील। रातें जागने का मतलब ये नहीं कि रात रात भर जागना हो, कह रहे सर 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, आपने तो ये नो कहा। नहीं वो नहीं, बट एक्चुअली सर पता क्या है, रातें जागना भी, बट एक डायरेक्शन जो आप जो साथ साइड बाय साइड आपने इनिशियल पॉइंट बोला था ना, विजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सर क्या है कि माइंड जो है ना कई बार हमारे को भटकाता बहुत है। जैसे अभी तेजस्वी ने कहा कि हमारा ईगो जो है वो बहाने ढूंढ लेता है, माइंड और ईगो प्ले करते हैं और हम बहाने ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्बिट्री एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं कुछ बना रहा था, जैसे आज मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन बाद किसी का बर्थडे है तो आई विल ट्राई समथिंग, बट दो मेरे माइंड को एक ऑप्शन मिल गया कि आई कैन ऑर्डर दैट फ्रॉम अ होम बेकर या कोई भी, तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, चल यार मैं मेरा काम इजी हो गया ना, मैं क्यों बेकार में चक्कर में पड़ूं, कौन लाएगा, कौन बैठ के काम कैन आई करेगा। होल्ड यू ऑन दिस? होल्ड ऑन, बड़ी अच्छी यस बात है। यस देखो अब क्या है, हमने कहा केक बनाते हैं, हमने सोचा केक बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें लगा चलो ऑर्डर कर देंगे किसी होम मेकर से तो काम हो जाएगा। हमने आसान काम ढूंढ लिया, विच इज ओके विद मी, राइट? बट प्लीज अंडरस्टैंड, ए पॉइंट पे हमने सोचा केक बनाने के लिए, बी पॉइंट पे आपने केक बनाया, अगर हाइपोथेटिकली बनाया, तो ए से बी के बीच में जो आप बन रहे हो ना, जो प्रोसेस से गुजर रहे हो, वो है आपकी ग्रोथ, वो है साहिल का अस्तित्व, वो है उसका वर्चस्व। आप समझे? जो केक बनाओगे ना, जब आप उस मोमेंट पे, और जब बना के जो निकलेगा तो छोड़ दो, आउटकम तो छोड़ दो, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है ना, दैट्स व्हाट विल मेक साहिल इन द लाइफ टाइम। हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं। हम कहते हैं चलो आउटकम आसान कर देते हैं, पैसे हैं या तो ऑर्डर कर लेंगे या मंगा लेंगे या किसी के थ्रू बनवा लेते हैं, करेक्ट? तो बस यही एक फर्क है। एक है आपकी इंट्यूशन जिसने कहा कि मैं केक बनाता हूँ, एक है आपका माइंड जो कहता है कि कन्वीनियंस में घुस जाते हैं। तो क्या हुआ? आत्मा ने कहा कि यहाँ से कुछ बन सकता हूँ मैं, आत्मा ने कहा, इंट्यूशन ने कहा मैं कुछ बन सकता हूँ, लेकिन दिमाग ने आसान रास्ता, प्रोज एंड कॉन्स दिखाए, 3 घंटे। अब माइंड ने कहा छोड़ो यार, पैसे हैं, जब मैं किसी से ऑर्डर कर लेते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। बस यही एक दुविधा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को समझ लिया और इसको आपने सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आप सिंक्रोनिसिटी में हो, नहीं तो क्या फिर हम उलझते ही चले जाते हैं चक्रव्यूह के अंदर। ट्रू सर, थैंक यू सर। Thank you. Anyone else? Anuj, you want to ask? No, I think I got the answers from the questions of others. All good with me. Chalo, I'm happy to hear that. All right, everyone. So let's take your leave then, and I will see you back again. Till then, Hanji Sahil ji, boliye. सर ये पॉइंट्स आज आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, दैट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा, किसने लिखे हैं पॉइंट्स आज के? किसी ने लिखे हैं प्रॉपर्ली? सब एक से एक बढ़कर है। तेजस्विनी, आज हमारे पार्टिसिपेंट्स किसने लिखे हैं? सर किसी ने नहीं लिखे, आज सुन रहे थे सबके सब। I have the recording, I can share the recording. नहीं, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट्स एक्चुअली, यस। सर इफ पॉसिबल आप पॉइंटर्स आप रिकॉर्ड कैसे कर रही हैं? सॉरी, वो मोबाइल रिकॉर्डर पे। अच्छा, जो आपने बीच में बोला वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर पॉज कर लिया, जो आपने बीच में बोला वो लाइक बुक के नेम्स और ये सब। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो एवरीवन, हाँ, पॉइंट्स किसने लिखे हैं? पेन पेपर से या कुछ? सब मैंने लिखे हैं। अच्छा ठीक है, तो साहिल एक काम कीजिएगा। हाँ जी, तराली जी बोलिए। I have written, but it's all scattered. तो ठीक है, एक काम करते हैं, तराली जी आप कंबाइन कर लीजिएगा, तेजस्विनी आप कंबाइन कर लीजिएगा, ठीक है? आप भेज दीजिएगा हमें वो डॉक्यूमेंट में, then I will send it to all the participants. Okay. Yes sir. Thank you. All right, everyone. Thank you so much. हाँ जी बोलिए तराली जी। I reward myself, with buying a new tracksuit. Sorry, I reward myself by buying a new tracksuit just after. अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, wonderful, congratulations.
Congratulations on that. That's very, very nice. Awesome. All right, everyone. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you, sir. And I will see you back Take again. care. Thank you so Bye, much. Ria. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Have a good day, sir. Good day. You Have a too. good day, Bye-bye. sir. Thank you.